أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہے میم؟ الحمدللہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. آج ہم نے آپ کو اس وقت بلایا اور الحمدللہ آپ سب آ گئے. تو چلیے جلدی سے بنا وقت ضائع کیے ہوئے شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 13. لیسن 13 کو عربک میں کہتے ہیں 13th کو، جس کو کہ اردو میں ہم بولتے ہیں 13واں. الدرس الثالث عشر. الدرس، ان دونوں کو ملائیے یہاں پہ کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں. آپ الدرس الثالث عشر 13th لیسن کریں گے. اور اس لیسن میں آپ کچھ بھی نیا سیکھ نہیں رہے ہوں گے، بلکہ لاسٹ لیسن جو ہمارا لیسن 12 تھا وہ بھی ریویژن تھا، اور لیسن 13 بھی اسی طرح. اب تک ہم لوگوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کی ریویژن ہی ہے انشاءاللہ. کوشش کیجئے کہ جب بھی میں کچھ پوچھوں تو اس کے فوراً بعد مائک میوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں ایک بار پھر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور مشکل نہ کرے، مشکل نہ ہو ہمیں، اور خیر کے ساتھ ہم اپنے نہ صرف آج کی کلاس کو بلکہ پورے کورس کو مکمل کریں. اس کتاب سے ابھی تک ہم لوگوں نے جو کچھ بھی سیکھا وہ سب کا سب جملہ اسمیہ ہی تھا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک فعل کا کوئی لفظ نہیں سیکھا. آپ دیکھیے اتنی ساری بات اور سب اسم سے ہی پوری ہو رہی ہے. اب تک ہم لوگوں نے صرف اسم کیا، اور وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. سنتی چلیں یہ ساری باتیں جس سے آپ کی بس ریویژن ہو. مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہیں، مبتدا اور خبر. خبر ہمیشہ نکرہ یعنی تنوین کے ساتھ آتی ہے، اور یہ اسی تنوین سے ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اردو میں جو ہم لوگ جملہ کمپلیٹ ہونے کی نشانی ہے اور فل سٹاپ اور یہ ساری چیزیں لگاتے ہیں، وہ لگا کے جملے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ ہے آپ کا لیسن تھوڑا بڑا ہے کیونکہ یہ آپ کو اچھی ریویژن دیں گے. اس میں اب تک آپ نے جو کچھ بھی سیکھا، شروع میں ہم ہر مرکب کا اور ہر وہ چیز جو آپ نے سیکھی ہوئی ہے تو ایک بار ہم اس کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. الدرس الثالث عشر اور المسجد. یہاں پہ ٹاپک ہمارا کیا ہے اس چیپٹر کا؟ مسجد، دا ماسک. انگلش میں اگر ہم کریں گے تو ال کا ترجمہ کرتے ہیں دا ماسک، اور اردو میں ایسا کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو بس مسجد کریں اردو میں. 1 منٹ کسی کو ہوسٹ بنا دو تو وہ مائک لوگوں کے میوٹ کر لیں. آپ میں سے کون جس کو آتا ہے کہ اگر کسی کا مائک غلطی سے میوٹ ہو جائے تو وہ میوٹ کر دے گا؟ میم مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے فرزانہ، میں آپ کو کو ہوسٹ بناتی ہوں. آپ تھوڑا جی ہاں. تو شروع کرتے ہیں لیسن اپنا. بسم اللہ. ہاذا مسجد. ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور مسجد یہ مشار الیہ ہے، اور یہ دونوں اس میں اشارہ اور مشار الیہ تو ہیں، ساتھ میں ہی یہ جملہ اسمیہ بھی بنا رہے ہیں جہاں پہ ہاذا مبتدا ہے اور مسجد خبر ہے. ترجمہ ہوگا یہ ایک مسجد ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب بھی تنوین ہوتی ہے تو ہم ایک یا کوئی لگا کے بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کہیں گے دس از اے ماسک. ہاذا مسجد، دس از اے ماسک. تو یہ ہمارا ہو گیا مرکب اشاری، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اشارہ اور مشار الیہ. ٹھیک ہے، اور یہ جملہ اسمیہ بھی بن رہا ہے ہمارا، مرکب تام بھی ہے، مطلب کمپلیٹ ہو گئی بات. یہاں پہ یہ ایک سینٹینس ہے.
आगे देखते हैं कि मस्जिद के बारे में क्या बताया जा रहा है। बाबुहु कबीरुन। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ और आप लोग गौर से सुनिए, और ये सेम रूल अप्लाई होगा इन सब पे। ठीक है, यहां तक ये सब जो चल रहा है ये यहां तक, तो इसको देख लें गौर से। ये बाबुहु, ये एक लफ्ज नहीं है बल्कि दो लफ्ज है, और इसका तर्जुमा होगा उसका दरवाजा, यानी मस्जिद का दरवाजा। तो ये बाबुहु दो लफ्ज से मिलके बना है, तो ये मुरक्कब हुआ। और ये मुरक्कब अब देखेंगे कि ये कौन सा मुरक्कब हो सकता है, और हम इसका तर्जुमा कैसे करेंगे। ये दोनों ही बातें आपको, अगर आप अब गौर से सुनेंगी तो समझ में आ जाएगा। जैसे ही हमने देखा कि बाबू लफ्ज क्या होता है, बाबुन होता है। अगर ये इस्म है, और जाहिर है दरवाजा तो इस्म हुआ ना, तो इसको या तो तनवीन के साथ होना चाहिए था या अल के साथ होना चाहिए था। यहाँ पे हम देख रहे हैं अल तो है नहीं, और तनवीन भी नजर नहीं आ रही है। बाबू, एक मिनट में पेन भी ले लूं। तो इससे हमें ये अंदाजा हुआ कि इसका एराब हल्का है। जैसे ही हमको पता चलता है कि किसी इस्म का एराब हल्का है, एराब हल्का मतलब तनवीन नहीं है, सिंगल हरकत है, तो एक वजह उसकी, कुछ और भी वजूहात हैं जो आपको आगे चल के पता चलेंगी, लेकिन अभी जो बेसिक वजह है, और वो चीजें ही आपके उसी तरह के अल्फाज और जुमले आएंगे। तो फिलहाल आप ये समझें कि अगर किसी इस्म का एराब हल्का है, तो चांसेस हैं कि वो मुदाफ होगा। ठीक है। अब इसको हमने सोचा कि ये मुजाफ होगा, लेकिन इसके मुजाफ होने में आगे हमको एक इस्म चाहिए जो कि मुजाफ इलय की कंडीशन भी पूरी कर रहा हो। मैम आवाज बहुत कट रही है। आवाज बहुत कट रही है। इंटरनेट असल में थोड़ा, मुझे ऐसा ना हो कि फिर ये क्लास रिपीट करनी पड़े। इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बल्कि इस वक्त मैं इन वाईफाई ने काम ही नहीं किया, तो मैं मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही इस वक्त आपसे कनेक्टेड हूँ। अभी भी मुश्किल है या क्लियर हुआ? बीच में दिखाया ही दिया था मुझे कि अनस्टेबल है, लेकिन अब ठीक लग रहा है। अब ठीक है, या अभी भी आवाज कट रही है? नो मैम, अब मैम आपका अब रिलैक्स हो बेहतर जाए। है, ठीक है। वो जब सिग्नल खराब होगा तो मेरे पास आएगा, तो मैं उतनी देर चुप हो जाऊंगी, अगर ऐसा है तो। बस आप इसको समझे गौर से कि ये दो इस्म है। दो इस्म, जब हमने पहले इस्म पे गौर किया तो देखा कि ये, इसका एराब हल्का है, मतलब शुरू में हमको अल भी नहीं दिखाई दिया और आखिर में तनवीन भी नहीं दिखाई दी, बाबू। तो अंदाजा हुआ कि ये मुजाफ हो सकता है, लेकिन किसी चीज के मुजाफ होने में उसके आगे एक मुजाफ इलैह का भी होना, पाया जाना जरूरी है। अब मुजाफ इलैह हम कैसे पहचानेंगे? अब इसके आगे जो इस्म है उसकी बस एक कंडीशन है, वो अल के साथ भी आ सकता है, तनवीन के साथ भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। इसकी कंडीशन क्या है कि हालत जर में होना चाहिए। तो ये हु जो जमीर है, ये हुआ की ही हालत जर की जमीर है। आपने सुना होगा हुआ मतलब ही होता है ना, और इसलिए बुक में किया भी है। हुआ का मतलब है ही। अब जब इसकी हमें हालत जर में जमीर चाहिए, उसका उर्दू में हम क्या कहते हैं, उसका, तो यानी हिज। तो ये हु जो है ये हिज है, तो हमें एक हालत जर में जमीर दिख गई। तो अब ये मुदाफ की कंडीशन इसने पूरी कर दी, और मुदाफ इलैह की इसने पूरी कर दी। और अब हम तर्जुमा करते हैं, हु का मतलब होता है उस, और मुरक्कब इजाफी का जब तर्जुमा करते हैं तो पीछे से करते हैं और बीच में लगा देते हैं का, उसका दरवाजा। ये बात सबको क्लियर हो गई? आप लोग जितने लोग हैं, मुदाफ और मुदाफ इलैह की। अब देखिए, जब भी हम तर्जुमा करेंगे तो जैसे ही देखेंगे कि ये पहले इसम का एराब हल्का है, और उसके आगे हमें दिख जाएगी एक मजरूर जमीर। और अभी आप लोगों को देखें, जब ये मैं कह रही होंगी तो आप कह रहे होंगे ये स्पीड में पढ़ने में हम कैसे, ये जो इतना हमने 5 मिनट बताया है, तो 5 मिनट का तो टाइम नहीं मिलेगा सोचने का। धीरे धीरे इतनी पहचान हो जाती है, बल्कि आपको शायद हो भी चुकी हो, कि देख के ही समझ में आ जाता है कि मुरक्कबे इजाफी है। क्योंकि चीजें, जैसा कि
अल्लाह ताला ने कहा है कि आसान भी है, और अल्लाह ताला तरीका क्या है कि रेपिटेशन भी बहुत है। रिपीट हो के ही चीजें क्लियर हो जाती हैं, कोई परेशानी नहीं होती। तो बाबहू कबीरुन, अभी देखिए यहाँ बताया हमने, आगे चलता रहेगा इसी तरह। तो यहाँ पे ये मुरक्कब जुमला इस्मिया चल रहा है ना, ये सब जुमला इस्मिया है। तो ये मुरक्कब मुब्तदा बन के आ रहा है, और ये खबर बन के आ रही। उसका दरवाजा, और इसकी खबर क्या आ रही है? बड़ा है, कबीरुन बड़ा है। और ये कबीरुन जो है वो बाप को फॉलो करेगा, नंबर के हिसाब से भी, और नंबर के हिसाब से भी, और अदद के हिसाब से भी, जिन्स के हिसाब से भी। ठीक है, बस मार्फा और नकरा वो नहीं फॉलो करेगा, बाकी तीनों चीज हिसाब से ये फॉलो करेगा। तो बाबहू, उसका दरवाजा बड़ा है। ये हो गया आपका मुब्तदा, और ये खबर। तो ये दोनों मिलके हो गए जुमला इस्मिया। उसमें आपका ये है मुरक्कबे इजाफी। इसी तरह फिना उहू। अब ये देखिए, फिना उ, ये एक लफ्ज हुआ। अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, हमें लगा कि ये मुरक्कब इजाफी है। और फौरन देखा बाद में तो हमको एक इस्म मिल गया हालत जर में, हु जमीर मिल गई हमको हालत जर में। और कंफर्म हो गया कि फिना उहू। अब फिनाउन आपके लिए नया वर्ड है। अगर ये अलग से होता, मुरक्कब की हालत में ना होता, तो इसको हम क्या कहते? फिना उन। ये हमजा के ऊपर पेश नहीं, तनवीन होती। ये तो मुदाफ की वजह से तनवीन चली गई और सिंगल हरकत रह गई। तो फिना उन की मीनिंग होती है छत। ठीक, सहन, सॉरी, सहन। छत सख्फ को कहते हैं। फिना उन कहते हैं सहन को। ये नया वर्ड है। जितने ये अंडरलाइन है बाप, ये बाप तो मैंने अंडरलाइन किया है। जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये नए वर्ड हैं। इनकी मीनिंग आप चाहे तो अभी लिखती रहे, और चाहे तो बाद में रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अल्लाह करे आ जाए तो उसको सुन के आप लिख लेंगी। फिना उहू, उसकी छत, वासिउन, वसी है। सॉरी, फिर मैंने गलत बोल दिया। उसका सहन वसी है। फिना उहू यानी मस्जिद का सहन, मस्जिद की ही बात हो रही है। फिर दिखा रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। ठीक है, बस 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, हम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। बिना उहु वासिउन। तो ये हो गया आपका मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब इजाफी यहाँ पे मुब्तदा बन के आ रहा है, और वासिउन खबर है जुमला इस्मिया की। तो उसका सहन वसी है। सक़्फ़ुहु, अब सक़्फ़ुन होना चाहिए था, लेकिन सक़्फ़ु, फौरन दिमाग काम करेगा कि ये मुदाफ हो सकता है, क्योंकि ये तनवीन और अल दोनों से ही खाली है। और इसके आगे हमें हु की जमीर मिल गई जो कि हालत जर में है। तो उसकी छत मुर्तफिउन, बुलंद है। उसकी छत बुलंद है। याद रखें, जुमला इस्मिया का एक और पॉइंट, बस लिखे भी ना चाहे तो सुनते ही रहे, बस सुन सुन के ही सब काम होगा। कि जो हम क्यों कह रहे हैं बार बार जुमला वर्ड इसके लिए, क्यों? क्योंकि हमें आखिर में तनवीन, जुमला इस्मिया में मुब्तदा होता है, और खबर जो होती है उसकी वो नकिरा होती है, मतलब तनवीन के साथ होती है। अगर ये तनवीन, हम इसी वजह से हम पूरा जुमला इसको कंप्लीट कर रहे हैं कि उसकी छत बुलंद है। और ये है करके फुल स्टॉप या डैश जो भी उर्दू में लगाते हैं वो पूरा लगाएंगे। तो इस मस्जिद के बारे में बात हो रही है कि इसकी छत बुलंद है। मुर्तफिउन, ये मुर्तफिउन रफा आइन इसका रूट वर्ड है, रफा, जिसका मतलब ऊंचा होता है। फिर इसी तरह है मिदनतुन। लेकिन यहां पे तो देखिए ये तू से है। मिदनतुहु, ये वर्ड क्या है? जब आप वर्ड मीनिंग लिखेंगी ना, इसकी वर्ड मीनिंग लिखेंगी तो आप लिखेंगी मिदनतुन, और उसके आगे लिखेंगी मीनारा। मस्जिद में मीनारे होते हैं ना, मीनारा। तो मिदनतुहु,
اس کا مینارہ، یہ بھی مرکب اضافی، اس کا مینارہ عالیتن بلند ہے۔ اب عالیتن کا میننگ بھی بلند ہے، اور مرتفعن کا میننگ بھی بلند ہی ہے۔ یہ دونوں سینونیم ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ایک ہی میننگ کے دو الفاظ، اور اردو عربک میں اسے کہتے ہیں مترادف۔ میں لکھ دوں یہاں پہ، یہ اور یہ دونوں، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ مترادف، سینونیم کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ایک ہی میننگ کے دو ڈفرنٹ الفاظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب سقفن تھا یعنی مذکر تھا، تو خبر کیا تھی؟ مذکر تھی، ہے نا؟ مرتفعن، یہ سب آپ کو اسی کی سب کی پریکٹس دی جا رہی ہے۔ اور یہاں مئذنتن تھا یہ، ٹھیک ہے، اور جو کہ مضاف ہونے کی وجہ سے تو رہ گیا۔ تو یہ گولتا کیا ہوتی ہے؟ یہاں تب کھل گئی، لیکن اگر آپ الگ سے لکھیں گے تو اس کو گولتا کے ساتھ لکھیں گی۔ تو مئذنتن یہ مؤنث تھی، یعنی مینارہ مؤنث تھا، تو اس کے لیے صفت بھی کیا آئی؟ مؤنث عالیتن آئی۔ تو بس انہی سب چیزوں کو آپ کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے، کہیں میں بتاؤں گی اور کہیں کہیں آپ خود ہی سوچ لیں گی اور نکال لیں گی۔ جب یہاں میں جمیلتن بولوں گی تو آپ دیکھ لیں گے کہ قبتن تھا، یہ قبتن تھا جو کہ تو رہ گیا، اور آگے یہ ہو کی ضمیر اٹیچ ہو گئی، قبتہ جمیلتن۔ قبتن کہتے ہیں گنبد کو، ٹھیک ہے، گنبد کو، تو اس کا گنبد خوبصورت ہے، یا اس کا، چونکہ مسجد تو ہم اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نزدیکی ہے، تو اس کر دیں گے اردو میں، اس کا گنبد جمیلتن خوبصورت ہے۔ یہاں تک ابھی تک آپ یہ سارے جو انڈر لائن، باب ہو، فناؤ ہو، سقف ہو، مئذنتہ، یہ سب کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، اور ضمیر کے ساتھ، سب کے آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر، جو ہو کی ضمیر یہ مسجد کو جا رہی ہے، مسجد مذکر ہے اس لیے یہ ہوا والی ضمیر چل رہی ہے، ہوا، اور یہ مجرور حالت میں ہو۔ اب آگے دیکھیے دوسرا مرکب پہچانیے، فل مسجدی۔ اب اگر یہ زیر یہاں نہ بھی لگی ہو تو آپ بہت اچھی طرح سے آپ سب پڑھیں گے فل مسجدی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فی حرف جر ہے، یہ بہت ہی اسٹرانگ، چھوٹے ننے منے الفاظ ہوتے ہیں یہ، لیکن اسٹرانگ بہت ہیں یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو زیر کر دیتے ہیں، حالت جر میں لے کے چلے جاتے ہیں، ان کی پیش ہٹ جاتی ہے اور یہ زیر لے لیتے ہیں، بلکہ اگر زیر کے بجائے حالت جر کہیں تو تھوڑی سی ایڈوانس اور اچھی بات ہوگی۔ تو یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں یا مجرور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فل مسجدی کبھی بھی نہیں بول سکتے ہم فل مسجدو یا فل مسجدہ، یہ نہیں بول سکتے، ایک جوک ہو جائے گا یہ۔ فل مسجدی حوضن، اچھا اس کا ترجمہ کہتے ہیں مسجد میں، ہے نا، اس طرح ترجمہ کرتے تھے فلم، تو یہ فل مسجدی، یہ آپ نے ایک دوسرے مرکب کی آپ کی ریویژن ہوئی، جو کہ مرکب جاری کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب جاری۔ مرکب جاری دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، حرف جر اور اس کے آگے ہوتا ہے اسم، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو مرکب اشاری دیکھا یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، اسی طرح آپ نے مرکب اضافی دیکھا، باپ بھی اسم تھا اور ہو بھی اسم تھا، لیکن مرکب جاری اب تک آپ نے یہ مرکب سیکھا جس میں پہلا لفظ اسم نہیں ہے بلکہ حرف ہے، اور وہ کون سا حرف ہے؟ حرف جر ہے۔ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کہ عربک کی پارٹس آف اسپیچ، یعنی عربک کے سارے الفاظ تین گروپس میں ہی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، پہلا تھا اسم، دوسرا تھا فعل یعنی ورب، اور تیسرا تھا حرف۔ تو ابھی تک آپ زیادہ تر یہ کر رہے ہیں اور تھوڑے سے آپ نے یہ کیے، یہ ابھی ہم لوگوں نے نہیں کیا، تو یہ فی جو ہے اس کیٹیگری میں ہے، ٹھیک ہے، حرف میں ہے۔ تو فل مسجدی، مسجد میں، حوضن ایک حوض ہے۔ اب دیکھیں یہ تنوین ہم کو ایک کا بھی مطلب دے رہی ہے
اور جملہ خبر کا بھی، اس سے ہمیں یہ پتا چلا خبر بھی ہے، کیونکہ خبر کی کنڈیشن یہی ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نکرہ ہونا چاہیے نا، تو میں نے صرف اتنا ہی بولا ہے، نہ میں نے ہمیشہ بولا ہے، نہ ہم نے ایسا کوئی ایکسٹرا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں یہ میجورٹی موسٹ آف دا ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، تو جب تک ہم ہمیشہ ورڈ نہ لگائیں، آپ ہمیشہ ورڈ نہیں لگائیں گی، ٹھیک ہے؟ فی المسجدی حوضن، مسجد میں ایک حوض ہے، اور پورا جملہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ۔ فی الحوضی، اب دیکھیں یہاں پہ لگا ہوا نہیں، دکھ نہیں رہا ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اگر نہیں دکھ رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ فی آ گیا تو حوض کے نیچے زیر آئے گی، کیونکہ اب یہ حالت جر میں جائے گا۔ تو فی الحوضی سمکن، حوض میں ایک مچھلی ہے، سمک کہتے ہیں مچھلی کو، سمکن مچھلی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی علامت مؤنث کی نہیں ہے، تو سمکن کیا ہوا؟ میسکولن ہوا، مذکر ہوا، ٹھیک ہے؟ اور آگے دیکھیں مذکر کی طرح سے ہی پھر اس کے بارے میں بات ہوگی۔ مسجد بھی مذکر تھی تو ہو کی ضمیر استعمال ہوئی۔ سمکن، حوض میں ایک مچھلی ہے، لونہو، لون کہتے ہیں کلر کو، اور آپ نے الوان اور عیوب آپ کو بتائے تھے، اور وہاں بتایا تھا کہ الوان کہتے ہیں کلرز کو، اور یہ لون کی جمع ہے۔ تو لون یہ ہو گیا، اور یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پھر ایک بار مرکب اضافی لونن ہونا چاہیے تھا، اعراب ہم کو ہلکا دکھائی دیا، اور ہم کو حالت جر میں ایک اسم بھی مل گیا، تو دونوں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی کنڈیشن پوری ہوئی، تو یہ بن گیا مرکب اضافی۔ اور اس کا ترجمہ پھر ہم کا کی کر کے پیچھے سے کر لیں گے۔ اس کا رنگ یعنی مچھلی کا رنگ، اس کا رنگ احمرو سرخ ہے، وہ اسفرو اور پیلا ہے، وہ ازرقو اور نیلا ہے، مطلب اس مچھلی میں یہ تینوں کلرز ہیں، سرخ رنگ بھی ہے، پیلا رنگ بھی ہے، اور نیلا رنگ بھی ہے۔ اب دیکھیں آپ یہاں پہ، اب یہاں پہ تو یہ تنوین کے ساتھ خبر نہیں آئی نا، ہے تو یہ بھی خبر، اور جملہ پورا ہوا، ہم تو جب ترجمہ کریں گے تو ہے کر کے اور ڈیش لگا کے جملہ پورا کر رہے ہیں، لیکن یہ تنوین کے ساتھ نہیں آ رہی ہے، اور تب بھی یہ خبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹیوزڈے کی کلاس میں کر رکھا ہے کہ افعلو کے وزن پر غیر منصرف اسم آتے ہیں جو کہ تنوین نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے احمرن کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ احمرو ہوگا، کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے؟ جو لوگ دونوں کلاسز میں ریگولر ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور جن لوگوں نے کلاس نہیں اٹینڈ کی ہے تو وہ بالکل پریشان نہ، کبھی نہ کبھی آپ چاہے ریکارڈنگ سے آپ کر لیں گے، اور نہیں تو کسی اور بیچ میں یہ چیزیں آپ سیکھ لیں گے۔ فی الحال ہمت کر کے ساتھ چلتے رہے، اور جنہوں نے، جو لوگ بھی، ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی ہے جس کی کلاسز پچھلی ساری کمپلیٹ نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہے تو پلیز موقع نکال کے ریکارڈنگ ضرور سن لیں، اس سے آپ کو یہ غیر منصرف والا جو ہم نے لفظ کہا ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو لونہو، اس کا رنگ، احمرو سرخ ہے، وہ اسفرو، وہ کب کہتے ہیں؟ یہ بھی حرف، یہ بھی حرف ہے، حرف میں آتا ہے، حرف عطف کہتے ہیں اس کو، یہ جوڑنے کے کام میں آتا ہے، اور یا اس طرح کے الفاظ، اور یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو کچھ اثر نہیں ڈالتا، یہ کمزور حرف ہے۔ دیکھیں فی نے تو اس کو زیر کر دیا تھا، لیکن وہ اس کو اسفرو ہی اس نے رہنے دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی اسم کی نارمل حالت بائی ڈیفالٹ وہ رفع کی حالت میں ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے وہ آیا لیکن پھر بھی اسفرو رفع کی حالت میں رہ گیا، تو وہ ایسا حرف ہے جو کہ اپنے آگے آنے والے اسم پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو وہ اسفرو اور پیلا، وہ ازرقو اور نیلا ہے، کس کا رنگ؟ مچھلی کا رنگ۔ تو یاد رکھیں کہ ہوا کی مجرور ضمیر اسی کی، جیسے ہی سے ہز بنا تھا ٹھیک اسی طرح سے ہوا سے ہو بنا حالت جر میں۔ فل فنائی، اب دیکھیں فل فنائی شجرتو وردن، صحن میں، فل فنائی
सहन में, अब ये मस्जिद के सहन की बात हो रही है, ठीक है, पूरा चैप्टर मस्जिद के बारे में ही चल रहा है। फिल फिनाई, सहन में, शजरतु वर्दिन, गुलाब का एक दरख्त है। अब देखिए यहाँ पे ये तनवीन बता रही है कि ये पूरा मुरक्कब, फिर हम इसको, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए तनवीन आ ही नहीं सकती थी, तो यहाँ से हमने एक का भी तर्जुमा किया और जुमला इसमें मियाँ हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि खबर हमको नकिरा मिल गई। अब ये शजरतु वर्दिन, ये बताएंगी फजीलत कि ये किस तरह का मुरक्कब है। फजीलत बोल रही है? ये मरकबे अजाफी है। शजरतु वर्दिन, ये मुरकबे तौसीफ। मैम ये मरकबे अजाफी है, फजीलत बोल रही। जी हाँ, सही बोला आपने, ये मुरक्कबे इजाफी है। चले इसको एक्सप्लेन करें, कैसे आपने डिसाइड किया कि ये मुरक्कबे इजाफी है? मस्जिद में नहीं, गुलाब का मस्जिद में फूल नहीं, है। ये जो मैंने सॉरी, अंडरलाइन शहर किया में, बस वो पढ़े। शहर में गुलाब का फूल है। नहीं, बस अंडरलाइंड वर्ड को बताएं कि ये क्या है, पहले बताएं ये क्या है। शजरतु वर्दिन, ये सहन वहन छोड़ दें। शजरतु वर्दिन ये कौन सा मुरक्कब है? कोई भी बता दे, जिसको आता हो वो कोई ये भी बता मुरक्कब दे। इजाफी है और ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैही है। कौन बोल रही हैं आप? अच्छा। कौन बोल रहा है? अफशा। अफशा। जी हाँ, मुरक्कब इजाफी है, और ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है। कैसे आपको पता चला कि ये मुदाफ है? वो हालत जर में और ये उसका इराब हल्का है मुजाफ का। हाँ, तो पहले मुदाफ के बारे में बताएं कि ठीक है, मुदाफ का मुजाफ एराब हल्का है, और मुदाफ इलैह हमको मिल गया क्योंकि ये हालत हालत जर में जर में होता है। है। वेरी गुड। तो बात समझ में आ रही है, और जो लोग नहीं बता पा रहे हैं मुझे पता है कि उनकी भी समझ में बात आ रही है, क्योंकि, और फिर हम इसलिए इसका तर्जुमा हम मुरक्कब इजाफी की तरह कर रहे हैं। गुलाब का दरख्त, ये का हमने ऐड किया ना बीच में, वो का इसीलिए ऐड किया कि मुरक्कब इजाफी है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिल फिनाई, चलिए आइए ये बताइए कि फिल फिनाई ये कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब जारी रूफे मुरक्कब जारी जी हाँ, ये मुरक्कब जारी है। जरूरी हम के साथ। क्यों? क्योंकि ये फी हरफे जर है, और अल फिनाई मजरूर हालत में हमें फिर एक किस्म इसके आगे मिल गया, जो कि हालत जर में है। तो लेकिन इसका तर्जुमा देखिए, छत में, यहाँ का की नहीं लगाते हम, ठीक है, छत, यहाँ छत का तर्जुमा किया, और फी का तर्जुमा, सॉरी छत में बार बार इसको क्यों कह रही हूँ, सहन है, सहन किया तर्जुमा, और फिर फी इसको में, तो सहन में शजरतु वर्दिन, एक गुलाब का दरख्त है। तो ये हो गया मुरक्कबे जारी, हरफे जर और मजरूर इस्म, और ये हो गया मुरक्कबे इजाफी, ये मुदाफ है विद एराब हल्का, और वर्दिन ये हालत जर में मिल गया मुझे मुदाफ इलैह। तो शजरतु वर्दिन, गुलाब का एक दरख्त। फिल फिनाई शजरतु वर्दिन, सहन में गुलाब का एक दरख्त है। व अमूदु कहरबाइन, अब ये बताएं कि ये वह हो गया हरफे अत्फ, यानी इसका तर्जुमा हम करेंगे। और अमूद कहते हैं पोल को या खंबे को, सुतूनों को, कुरान में आता है ये लफ्ज सुतून, है ना? तो अमूद कहते हैं सुतून को या खंबे को, और कहरबा कहते हैं बिजली को। तो अब ये देखिए, अमूदू, ये फिर अमूदू कहरबाइन, ये अल्फाज भी नए हैं, और ये जो पूरा अंडरलाइन ये लफ्ज मुरक्कब जो है, ये मुरक्कबे इजाफी है। फौरन देखें कि जैसे, क्योंकि आप तो बहुत आसान और सिंपल है आपका लेसन, कि सब इसम है, फेल का तो आपको सोचना ही नहीं है। तो जैसे ये लफ्ज दिखा और आपने देखा शुरू में अल नहीं, आखिर में तनवीन नहीं, 50% डिसाइड कर लें कि ये मुदाफ हो सकता है, और उसके आगे फौरन चेक करें, आपको मजरूर इस मिल गया, बस ये हो गया मुरक्कब इजाफी, ये मुदाफ की कंडीशन पूरी कर रहा है, ये मुदाफ इलैह की
पीछे से तर्जुमा कर दें, बिजली का खंबा। कहरबा बिजली, बीच में का लगाएं, क्योंकि मुरक्कब इजाफी के तर्जुमे में का की के लगाते हैं, और अमूद का मतलब होता है खंबा। तो बिजली का खंबा, इंग्लिश में आप करना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोल करें, और इलेक्ट्रिक पो और एक इलेक्ट्रिक पोल है, या और बिजली का एक खंबा है। समझ में आ रहा है सबकी? मैम ये जी मैम। कहरबा जो है बिजली है इसका? कहर नहीं, पर उर्दू में हम कहर बोलते हैं ना, ये कहरबा इन बोले। अब हाँ, यहाँ पे अरबिक में कहरबा। साकिन, कहरबा इन, इसका मतलब होता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अमूद का मतलब खंबा। जी, अमूद का मतलब खंबा। ठीक है, जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये न्यू वर्ड्स हैं इस लेसन में, बस आपकी वोकेबलरी थोड़ी बढ़ रही है, वरना ग्रामर तो देखिए सब पिछली रिवाइज हो रही है। तो वह अब ये वह और अमूदू, ये और हो गया, और फिर आमूद कहरबा। याद रखें, मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा भी हमेशा पीछे से होता है, और मुरक्कब जारी का भी हमेशा पीछे से होता है। सहन में करेंगी आप, में सहन नहीं करते, उर्दू में हम ऐसे नहीं बोलते में सहन एक गुलाब का दरख्त, ऐसे नहीं, सहन में बोलते हैं। तो आपको मुरक्कब जारी का भी पीछे से करना पड़ेगा, और मुरक्कब इजाफी का भी तर्जुमा उर्दू में पीछे से करना पड़ेगा। वमूद कहरबाइन, और बिजली का एक खंबा है। बिजिवारिर शजरती हुजरतुन सगीरतुन। अभी देखिए, बिजिवारी। मैम ये एक यहाँ से क्लियर कर दें। व अमूदु कहरबाई, और बिजली का एक खंबा है, स्टोन है। तो हाँ, यहाँ का जो है इसका नहीं मुझे समझ आ रहा है। यहाँ तो फिना उ हु इस का के मीनिंग दे रहे हैं ना। नहीं नहीं, हु का फिना मीनिंग नहीं दे रहा था। यहाँ पे देखिए, फिना उहू में हु का मीनिंग नहीं, हु बस उसका मीनिंग दे रहा था। उसका यस। तो यहाँ उस का जो का एक वो का, कौन मीनिंग? हाँ, हु की मीनिंग जो है, ये का भी, ये का तो हम उर्दू में बोल रहे, हु जो है बस इस लफ्ज, हु की मीनिंग ये है उस। ठीक है, और उस फिनाओ की मीनिंग है सहन। अब चूंकि ये मुरक्कबे इजाफी है फिना उहू, तो इसका तर्जुमा करते वक्त आप करेंगी उसका सहन। ये का जो है आप ऐड कर रही हैं उर्दू में, ठीक है। ऐड कर रहे हैं, ठीक है हाँ, मैम। जजाकिल्लाह। बिल्कुल, यहाँ भी इसी तरह अमूदू, ये मुदाफ है, और कहरबा इन, यहाँ दो डैश हैं, यहाँ तनवीन है। कहरबा इन, कहर नहीं बोलेंगी आप, कहरबा इन। तो ये क्या हो जाएगा, बिजली का एक खंबा है। ठीक है, ये एक, अब कहेंगे आप अमूदुन को हम कह रहे हैं एक खंबा, और यहाँ पे तो तनवीन है नहीं, ये तनवीन इसके लिए भी काम करेगी। अब एक बिजली तो कहते नहीं है उर्दू में हम, ये तो नहीं कहते ना कि एक बिजली का एक खंबा, खंबा होगा ना एक, बिजली तो एक नहीं है ना। तो इस तरह से उर्दू के हिसाब से हम तर्जुमा करेंगे, और बिजली का एक खंबा है। आगे चलें। अब ये देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा लेसन इन्होंने प्लान किया है। चाहे तो ये लेसन ही 4 घंटे का ले लूं मैं। बिजीवारी, ये है मुरक्कबे जारी। जैसा कि आपको मैम बस ये एक पीछे बात से ये जरा समझ लें। पूछना था। जी पूछें। मैम ये पीछे से पूछना था। कहरबाई, ये जो है मुजाफ इलैही है? जी हाँ, कहरबा इन, ये मुजाफ इलैह है। ये देखिए, तनवीन जी जेर की आ गई ना, तो जेर की जी तनवीन जी। का मतलब है कि हालत मजरूर है। ठीक है, अभी आप सब सुभान अल्लाह, बहुत ही आसान लेसन प्लान किया गया है, बहुत, कि अभी तक आप वाहिद इस्म ही कर रहे हैं, और वाहिद इस्म पेश आखिर में होता है तो रफा होती है, जेर होती है तो जर जर होती है, और जबर होती है तो नसब होता है। ठीक है, दो बात, एक बात और ये नोट करें, कि हर इस्म बाय डिफॉल्ट आखिर में उसके पेश होना चाहिए। अगर कोई वजह नहीं है, उसके पहले आगे कोई चीज नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो वो पेश होनी चाहिए। अब कोई इस्म अगर जेर की हालत में है,
क्योंकि अभी आप सिंगल वाहिद ही पढ़ रही हैं ना, इसलिए हम जेर बोल रहे हैं। मतलब हालत जर में है, तो उसकी दो वजह होगी, याद रखें, सिर्फ दो वजह। इसीलिए आपको ग्रामर पढ़ाते वक्त और इस किताब को प्लान करते वक्त जो सबसे पहले पढ़ाया गया वो मुरक्कबे जारी और मुरक्कबे इजाफी वाला पॉइंट पढ़ा दिया गया, जिससे जेर का मजरूर हालत का चैप्टर ही खत्म हो गया, पूरी की पूरी अरबिक ग्रामर से। सिर्फ ये दो वजह है। पहली वजह है कि उस इस्म से पहले हरफे जर आ जाए। तो ये चीज आप जब तिलावत करें तो भी नोट कर सकती हैं। वैसे तो मैं मना करती हूँ, कुरान में आपको समझना नहीं है अभी। जब अच्छी तरह बेसिक कोर्स कर ले, थोड़ा एडवांस कोर्स करें, तब उसको निकालने की और करने की कोशिश करें। अभी तो आप, अगर आपके पास वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का है तर्जुमा, तो बस वहां गौर कर सकती हैं आप। तो उस इस्म से पहले अगर हरफ जर आ गया तब ये इस्म ज़ेर होगा, या फिर ये इस्म मुदाफ इलैह हो। मुदाफ इलैह का मतलब क्या है? कि उससे पहले एक इस्म बैठा हो, जो कि इस इस्म से पहले, मुझे मुदाफ इलैह नहीं, यहाँ पे ये लिखूं मैं मुदाफ, या उस इस्म से, दो कंडीशन मैंने क्या बताई, कि उस इस्म से पहले या तो हरफे जर हो या फिर एक मुदाफ हो। मुदाफ का मतलब एराब हल्का। जब आप ऑडियो वीडियो सुना करें ना, ये ब्रैकेट हटाऊं यहाँ से वरना आप कंफ्यूज जी हो। जी। जब आप वीडियो देखा करें, तो मैंने जैसा कहा कि पॉज करके ये पॉइंट्स ऐसे नोट कर लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला। ये क्यों लिखना बंद हो गया? तो किसी भी इस्म के जर में जाने की बस दो वजह है, या तो उससे पहले हरफे जर हो, या उसके पहले कोई मुजाफ होगा। तो ये अब देखें यहाँ पे, जैसे ही हम लोग कहाँ पे, बिजीवारी। अब हमको देखिए, जीवारी, जीवार कहते हैं बगल को, पड़ोस को। तो जीवारी हमको ये दिखा कि हालत जर में है, तो हमने देखा कि हाँ, इसके पहले हमको एक हरफे जर बी मिल गया। तो बिजीवारी ये कौन सा मुरक्कब हो गया? ये हो गया मुरक्कबे जारी। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ रहा है सबकी? जब भी जी कोई मैम। इस्म आपको जेर की हालत में मिले, ठीक है, तो आप उसके पहले देखें हरफ जर होगा या फिर कोई ऐसा इस्म होगा जिसका की एराब हल्का होगा। देखिए अब यहाँ पे आगे हमने देखा अशजरती। अब यहाँ पे हमको ये दिखा, ये फिर हमको दिख गया ये हालत जर में। अब इसके पीछे हमने जाके देखा तो हमें कोई हरफ जर तो नहीं मिला, बल्कि एक इस्म मिला। अब हमने चेक किया कि इस इस्म को अब मुदाफ होना चाहिए, इसका एराब हल्का होना चाहिए, और यही वजह है कि ये बिजीवारी है। अगर यहाँ पे ये अशजरती नहीं होता ना, मुदाफ इलैह नहीं होता, तो ये होता बिजीवारिन। ये शजरती की वजह से इसका एराब हल्का है, मतलब ये मुदाफ इलैह है, तो इसके पहले होना चाहिए मुदाफ। और मुदाफ की क्या कंडीशन है? एराब हल्का। तो आप देखिए, अब ये दोनों मिलके बना रहे हैं मुरक्कबे इजाफी। ये जो अंडरलाइन किया, बी जीवारी मुरक्कबे जारी, और जीवारिश शजरती, ये बन गया आपका मुरक्कबे इजाफी। जीवारी की देखिए एराब हल्की है, एराब हल्का है। मतलब जीवारी से पहले ना तो अल है और ना ही तनवीन है, यहाँ पे सिंगल हरकत है, तो इसका एराब हल्का हो गया। और अशजरती, इसमें तो अल का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुदाफ इलैह में अल भी हो सकता है, और जैसा कि आपने देखा तनवीन भी हो सकती है। ये मसला नहीं है। मसला यहाँ क्या है कि इसको हालत जर में होना चाहिए, और ये हालत जर में है, तो ये मुरक्कबे, ये मुदाफ इलैह हो गया। दोनों ने मिलके कंडीशन पूरी की, और ये बन गया मुरक्कबे इदाफी, जिवारिश शजरती। ठीक है। और उसके आगे आ रही है खबर, हुजरतुन सगीरतुन। हुजरतुन, हुजरा कहते हैं कमरे को, और सगीर, अब चूंकि ये फेमिनिन था, तो इसकी सिफत भी, ये सिफत है ना, छोटा सा कमरा, कमरे की सिफत बताई जा रही है, तो सिफत भी आएगी
क्या क्या सिफत आएगी? बिल्कुल चारों पहलुओं से। मैम जवारी शजरती, ये मुरक्कब इजाफी बन गया ना। हाँ, वही तो मैंने बोला कि बी जीवारी मुरक्कबे जारी है, और जीवारी शजरती ये मुरक्कबे हाँ जी, इजाफी है। ये एरो ये लगा के मुरक्कब यहाँ पे, इजाफी है, ठीक। हाँ यहाँ लिख दूं तो ये मुरक्कबे इजाफी है, और ये मुरक्कबे जारी है। जी। ठीक है। अब आगे चलिए। हुजरतुन ये खबर हो गई, लेकिन ये खबर एक कमरा है यहाँ भी हो सकता था, बस इतना होता कि दरख्त के बगल में एक कमरा है, लेकिन कमरे की सिफत भी बताई जा रही है, कैसा कमरा है? छोटा सा कमरा है। ठीक है, हुजरतुन सगीरतुन। अब देखिए ये दूसरा मुरक्कब है, कंपाउंड वर्ड है, ये और प्लस ये, मुरक्कबी हुजरतुन। तौसीफी। जी हाँ, वेरी गुड, मुरक्कबे तौसीफी। ये है मौसूफ। मौसूफ मतलब वो जिसकी सिफत बताई जाए, और ये है सिफत। ये है सिफत। तो मौसूफ और सिफत मिलके बनते हैं मुरक्कबे तौसीफी, बनता है मुरक्कबे तौसीफी। और उर्दू में जैसे हम लिखते हैं छोटा कमरा, अभी हम बोल रहे हैं ना एक छोटा सा कमरा है, छोटा पहले बोलते हैं, कमरा बाद में बोलते हैं। अरबिक में मौसूफ पहले, कमरा पहले, और छोटा बाद में, सिफत उसकी हमेशा बाद में आएगी। और ये सिफत इसम के चारों पहलू मतलब एराब से भी सेम होगा। ये सिफत देखिए, ये रफा में है तो सिफत भी रफा में। फिर जिन्स में देखिए, ये फेमिनिन है तो ये भी फेमिनिन है। फिर इसी तरह अदद में ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, और ये तनवीन के साथ तो ये भी तनवीन के साथ। अभी आगे, अभी यहाँ देखिएगा कि बताऊंगी कि अगर ये अल के साथ तो ये भी अल के साथ, और यहाँ देखें, अब यहाँ पे देखिए। तो इसका पहले इसको पूरा कर लेते हैं। बिजिवारिश शजरती हुजरतुन सगीरतुन। दरख्त के बगल में, दरख्त की बात हुई थी ना यहाँ पे, तो दरख्त के बगल में एक छोटा सा कमरा है। अब देखिए यहाँ पे अल हुजरतु सगीरतु, ये फिर हो गया आपका मुरक्कबे तौसीफी। सुभान अल्लाह, लाइन भी इसमें सीधी नहीं आती। ये दोनों मिलके क्या है कि मुरक्कबे तौसीफी। कैसे पता चला मुरक्कबे तौसीफी? क्योंकि ये दो इस्म हैं, और दोनों हर लिहाज से एक दूसरे मतलब ये बाद वाला लफ्ज पहले लफ्ज को चारों पहलुओं से फॉलो कर रहा है। ये अल से है तो ये भी अल से है, ये रफा की हालत में है तो ये भी रफा की हालत में, ये फेमिनिन तो ये फेमिनिन, ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर। तो देखा गया कि सिफत मौसूफ को चारों पहलुओं से फॉलो कर रही है। बन गया हमारा मुरक्कबे तौसीफी। छोटा सा कमरा लिल मुअज्जिनी, ये था एक्चुअली, अब इसको समझ लें, लिल मुअज्जिनी ये था ली अल मुअज्जिन। ली होना चाहिए था इस तरह, मैं इसको लिखूं, ली और अल मुअज्जिनी, ली अल मुअज्जिनी। लेकिन ये ली जब आता है तो ये वाला हमजा ये हट जाता है, और ये लिल मुअज्जिनी। तो याद रखें कि जब लिल मुअज्जिनी आपने पढ़ा, ये लिल मुअज्जिनी जब आपने पढ़ा, तो पढ़ेंगी तो आप बेशक लिल मुअज्जिनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हरफे जर ली है, और यहाँ पे ये अल भी मौजूद है। ठीक है, ये अल भी मौजूद है, कि दूसरा वाला लाम जो है वो अल का लाम है, तो ये गिर गया। ठीक है, तो इसलिए हो गया लिल मुअज्जिनी। ये है ली प्लस अल मुअज्जिनी। इसको आप लिख सकती हैं कि ली, लिल मुअज्जिनी लिखिए और फिर लिखिए ली प्लस अल मुअज्जिनी, क्योंकि मुअज्जिन के बारे में भी बताया जा रहा है कि किसका कमरा है। अल हुजरतु सगीरतु,
छोटा कमरा, अब देखिए पीछे से तर्जुमा कर रहे हैं, छोटा कमरा लिल मुअज्जिनी, मुअज्जिन के लिए है या मुअज्जिन का है। दोनों तर्जुमा दोनों तरह से आप कर सकती हैं। उर्दू में हम बोलते हैं, अब किसी को हम मस्जिद घुमा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसको हम बताएंगे छोटा कमरा। पहले हमने छोटे कमरे की तरफ दिखाया कि उसके दरख्त के बराबर में जो एक छोटा सा कमरा दिखाया, और फिर कहा ये कमरा या छोटा कमरा मुअज्जिन के लिए है या मुअज्जिन का है। ली का मतलब होता है लिए, लेकिन उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं, उर्दू में जब हम बोलते हैं तो हम कह देते हैं मुअज्जिन का कमरा। ऐसे नहीं बोलते मुअज्जिन के लिए है ये कमरा, ऐसे नहीं बोलते, मुअज्जिन का कमरा, मुअज्जिन का घर। लेकिन बात तो वही है कि वो घर उसके लिए है। अरबिक में का घर की जगह पे लिल मुअज्जिनी आता है, फॉर द मुअज्जिन आता है, ठीक है। अल हुजरतु सगीरतु लिल मुअज्जिनी। ये मैं पूछूंगी कभी आपसे कि लिल मुअज्जिनी को जरा खोल के बताएं कि इसके अंदर एक लफ्ज है, दो लफ्ज है, अगर दो अल्फाज हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ली है शुरू में हरफे जर, क्योंकि देखिए आगे ये मुअज्जिनी, ये जेर आई है यहाँ पे, तो कोई वजह होगी, तो हमें इसके पीछे देखना है। तो ये ली हरफे जर है, इसकी वजह से ये, क्योंकि जेर में जाने की बस दो ही वजह है, या तो हरफे जर हो या मुजाफ। तो ये लिल मुअज्जिनी आपका मुरक्कबे जारी। और अल हुजरतु ये हो गया मुरक्कबे तौसीफी, और ये हो गया मुरक्कबे जारी। आगे चलें या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। आगे चल। टीचर मैम एक मुझे एक चीज बात एक चीज पूछनी है। पूछना। हाँ पूछे, मुझे सुन। फरजाना जी पहले आप पूछने हैं। हाँ, दोनों ही लोग उ- चुप हो गए, पूछे जिसको भी जो पूछना है पूछे। मैम मुझे आपने ये ऊपर बताया था ना, फिर ना उन मतलब सहन को कहते हैं, हम्म। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है फिर ना ई, तो मैम इसमें क्या डिफरेंस है? अलिफ हमजा क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अलिफ हमजा कहाँ पे, ये अलिफ हमजा। जी मैम, जो नीचे हमने पढ़ा फिर ना ई शाजारातु वर्दी, वर्दिन। वर्दिन सॉरी अच्छा से। चले, फिनाऊ को मैं समझा देती हूँ। ये देखिए, अभी इसमें आगे एक्सरसाइज तो हमें लगता है कि आज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिना उन, जितने भी आप नए अल्फाज लिखेंगे तनवीन के साथ लिखेंगी, सिंगल हरकत के साथ नहीं लिखेंगी। ये तो यहाँ पे किसी वजह से ये सिंगल हरकत में गए, अभी मैं समझा देती हूँ। फिना उन का मतलब हो गया एक सहन, ठीक है। एक सहन, कोई सहन, एक या कोई भी कर सकती हैं तर्जुमा, या बिना इसके भी कर सकती हैं। एक लगाएं, कोई लगाएं या ना लगाएं, सिर्फ सहन कर दें, फिना उन सहन, एक सहन, ठीक है। अब देखिए, जब ये मुदाफ बना फिना ऊ हु, तो मुदाफ बना तो इसकी तनवीन चली गई। ये बात समझ में आई। जी मैम। तो ये हो गया फिना उहु, उसका सहन, ठीक है। तो ये तनवीन चली गई। दूसरी तनवीन, यहाँ पे जो तनवीन गई है, आप जो यहाँ पे देख रही हैं, ये तनवीन इसलिए गई कि फिना उन से पहले जब अल लग गया, तो जब अल लग जाएगा तो भी तनवीन नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे ही अल लगा तो तनवीन चली गई, अब इसको होना पड़ेगा फिना अल फिना उ, ठीक है। समझ जी में आ मैम। रही है बात। जी जी आ रही है। यहाँ पे तनवीन क्यों गई, क्योंकि ये मुदाफ है, और यहाँ पे नहीं मैम, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये यहाँ पे फिर ना ई आया है ना, अलिफ हमजा का मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा कि ये अलिफ हमजा क्यों है। ये वाला ये अलिफ हमजा, मुरक्कब जी जारी मैम। है ना। नहीं नहीं, ये अलिफ हमजा तो भाई इस लफ्ज का हिस्सा है। ये तो फ नून अलिफ हमजा, ये तो ये लफ्ज ही ये है, तो ये तो यहाँ ये लफ्ज तो रहेगा यहाँ भी। ये देखिए, फ नून अलिफ हमजा, ये तो लफ्ज ही है पूरा, ये कोई ऐड नहीं हुआ, ये अलिफ हमजा ऐड तो नहीं हुआ फिना क्योंकि उन में हमने जो ऊपर पढ़ा, मौजूद। फिर ना उन मैंने पढ़ा, हमने पढ़ा था सेहन, तो यहाँ पे अल फिर ना ई है,
ای تو हाँ حروف جارہ کی وجہ حروف جر کی وجہ سے زیر ہے میم. تو یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا تھا فی نا ای، کیونکہ ہم نے تو صرف جر میں لے کے جانا تھا. الف حمزہ یا کوئی کیا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. میری میری یہ سن، آپ اس والے الف حمزہ کو کہہ رہی ہیں جی جی. یا شروع والے کو کہہ رہی ہیں؟ نو نو میم، یہ فل فنائی والا. تو یہ الف حمزہ تو شروع سے موجود ہے. یہ جیسے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پین، اب اگر میں کہوں کہ دا پین، تو آپ کہیں مجھے آخر میں یہ ای این کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ اگر ا پین تھا اور ا پین سے دا پین بنا تو دا پین بھی رہے گا. یہ الف اور حمزہ تو شروع سے ہی چل رہا ہے، یہ یہاں میم پہ یہ کوئی یہ نئی ورڈ چیز. کا حصہ ہے، یہ اس حرف کا حصہ فیل ہے، ہم نے سٹارٹ میں فیل کی پڑھے تھے وجہ نا سے بھی جب. آیا ہے نا فیل فنائی. اب ہم فیل کے بغیر تو اس کو نہیں، فی فنائی تو نہیں پڑھ سکتے نا اس کو. اور ٹھیک جب ہے. ہم نے وہ پڑھے تھے نا مونس والے تا والے کہ مونس کیسے بنتی ہے، تو ہم نے اس میں یہ ورڈز کچھ پڑھے تھے جو کہ الف اور حمزہ کے ساتھ ہی آئے تھے. میم یہ کہیں مؤنث تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، مؤنث نہیں ہے. یہ مؤنث کیوں ہوگا؟ یہ مؤنث نہیں ہے. یہ جو ہے، چلیں میں سمجھی کہ یہ کیوں کنفیوز ہو رہی ہیں. کچھ بھی پیچھے سے آپ ٹینگل نہ کریں. جو چیز یہاں بتائی جا رہی ہے فنا ان، تو بس اس کو فنا ان لیں، یہ مذکر ہے. یہ کر رہی ہیں کنفیوز صفراؤ سے. یہ صفراؤ پیلا جو یہ پیچھے گیا ہے، یہ اسپر کی فیمنن تھی. یہ الف حمزہ آپ کے اعراب کا سوچ رہی ہیں؟ الف حمزہ الف حمزہ. جی میم، یہ کنفیوز کر رہا تھا مجھے، تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. نہیں نہیں، کیونکہ ہم نے تو وہاں پہ پھر نا وہ اون تو باجی سہن پڑا ہے نا، پھر ہاں تو نا اون فنا، کو وہ دیکھیں، مطلب. میم فنا ان سہن پڑھا تو فنا ان. اور کوئی پلیز نہ بولے، انہی کو بولنے دیں، دوسرا کوئی نہ بولے ورنہ کنفیوژن ہو جاتا ہے، یہ اور کنفیوز ہوں گی. فنا ان یہ ایک لفظ ہے، بالکل سمجھے کہ اس لفظ میں فا، نون، الف اور حمزہ، یہ چار ورڈ مل کے ایک لفظ بن رہا ہے. اور اس فنا ان کا صفراؤ سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ دوسرے وزن کے، یہ اس کا کیا مل رہا ہے؟ یہ صفراؤ اور فنا ان مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے. سب سے بڑی بات تو ہے کہ صفراؤ کبھی تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا. تو یہ اس پیٹ مطلب سب، یہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے تو دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. یہ غیر منصرف ہے ہی نہیں اور نہ مؤنث ہے. یہ سب آپ کو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے. یہ فنا ان سے یہ الفنا او بنا، اور جب اس سے پہلے ایک حرف جر آ گیا تو الفنا او حالت جر میں گیا اور یہ بن گیا الفنا ای. یہی تو میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے آ رہی تھی، لیکن آپ نے بیچ میں. میم اب مجھے سمجھ آئی ہے نا، جی اب ہاں، تو آئی ہے. آپ نے مجھے سمجھانے ہی نہیں دیا. میں یہاں تک آ گئی تھی اور اس کے بعد میں آپ کو حرف جر ایڈ کر کے وہاں تک لے جا رہی تھی، لیکن آپ نے کہا میرا کوشچن یہ نہیں ہے اور مجھے بیچ میں اچھا، ہی. مجھے پھر سمجھنے میں غلطی ہوئی، سوری میم. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہماری کلاس ایک دم فری کلاس ہے. تو جب سوال پوچھے نا کوئی بھی، تو مجھے آخر تک سمجھانے دے. اور یہ بات صحیح ہے کہ اکثر سوال ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں ہی سوال نہ آئے، دیٹ از آلسو پاسبل. کوئی بات نہیں. تو یہ اس کی وجہ سے یہ بن گیا الفنائی. ٹھیک ہے. اوکے میم، تو جزاک فنا اللہ خیر. ان سے ال لگا تو یہ تنوین چلی گئی. اور جب اس سے پہلے حرف جر آیا تو یہ پیش جو ہے وہ کس میں چینج ہو گیا؟ زیر میں. فل فنائی، اور ہم کہیں گے سہن میں. اب کلیئر ہو گیا؟ جی میم الحمدللہ. اصل میں نا وہاں پہ واؤ نہیں پڑھنا نا، پھر نا ان حمزہ پڑھنا ہے. اب مین اب مجھے کلیئر ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا. جزاک اللہ خیر، کثیر کثیر الحمدللہ. والا. کوئی بات، چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. مس میرا بھی ایک بجوار سوال تھا. بابی. اب دیکھیے بی جیواری، یہاں کی جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں پیچھے جا کے دیکھنا ہوگا، اور ہمیں مل گیا ایک حرف جر بی. تو بی جیواری، ٹھیک ہے. اور تو ہو گیا بغل میں. کس کے بغل میں؟ البابی، دروازے کے بغل میں. یہ دونوں مل کے مرکب جاری، اور یہ دونوں مل کے مرکب اضافی. تو اب ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ دروازے کے بغل، یہ ہو گیا مرکب جاری کا.
اور اس کے بعد میں کر دیں مرکب اضافی بھی، سوری مرکب جاری بھی، تو دروازے کے بغل میں حجرتن کبیرتن، ایک بڑا کمرہ ہے، دروازے کے بغل میں ایک بڑا کمرہ ہے، تلکل حجرتو، ابھی دیکھیں تلکل حجرتو یہ مرکب اشاری، تل کا دیٹ فیمیل کے لیے، اور الحجرتو یہ مشارون الیہ وہ کمرہ، ٹھیک ہے، وہ چونکہ یہ حجرتو فیمیل تھا تو اشارہ بھی فیمیل آیا، ذالکا نہیں آیا، تل کا آیا، وہ کمرہ یعنی وہ بڑا آگے دیکھیے وہ کمرہ ہم کہہ رہے تھے لیکن پھر آگے صفت بھی ہے، تو صفت تو پہلے بولتے ہیں نا اردو میں، تو اب کریں گے وہ بڑا کمرہ، کیوں میں نے کہا صفت؟ کیونکہ میں نے دیکھا الحجرتو اور الکبیرتو یہ بالکل چاروں پہلوؤں سے سیم ہے، تو اس کا مطلب یہ الکبیرتو اس کی صفت ہے، یہ مرکب توصیفی، کافی مزیدار لیسن ہے نا، ہر لفظ اپنے آگے آنے والے ورڈ سے مل کے ایک مرکب بنا رہا ہے، تلکل حجرتو مرکب اشاری اور الحجرت الکبیرتو مرکب توصیفی، لی امامی یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری، اور امام المسجدی یہ ہو گیا مرکب اضافی، سبحان اللہ، اس جملے کے اندر چاروں مرکب آ گئے، مزہ آ رہا ہے یا سر میں درد ہو رہا ہے؟ ہاں میم مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. ہاں مزے ہی لیجیے، سر میں درد مت لیجیے، ٹھیک ہے؟ نو میم، اس کے لیے کیوں درد میم ہوگا، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے. میم یہ پچھلی لائن جو تھی بجوار البابی، ہوں یہ تو بجواری مرکب جاری ہے اور جوار البابی مرکب اضافی ہے، اور حجرتن تن کبیرہ تن مجھے تھوڑا نظر نہیں صحیح آ رہا، حجرتن نہیں، یہ حجرتن مرکب کبیرتن، توصیفی ہے. ہاں مرکب حجرتن کبیرتن یہ مرکب اضافی سوری توصیفی ہے. حجراتن پڑھے نا آپ، حجراتن کبیراتن ہاں مرکب توصیفی ہے. مرکب حجرتن توصیفی ہے، ہاں بس یہ حجرتن کبیرتن ٹھیک ہے، مرکب توصیفی، مرکب توصیفی. ہاں وہ پرنٹ اصل میں موبائل پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، میم واقعی یہ تو مرکبات کا مجموعہ ہے، اگلی لائن تلکل حجرت الکبیرت. ہوں تو یاد رکھیں کہ تلکل حجرت مرکب اشاری، پھر جی الحجرت الکبیرت یہ ہو گیا آپ کا مرکب توصیفی، پھر اب شروع کریں یہاں سے، لی امامی، یاد رکھیں کہ یہ امامی نہیں ہے، لی امامی ہوگا یہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ کلیئر نہیں دکھ رہا میم ہے، نیچے وہ حمزہ حمزہ ہے نا ہاں، چھوٹی، حمزہ کے نیچے لی، زیر ہونی چاہیے، جی جی زیر ہے بڑی چھوٹی سی. ہاں تو یہ لی امامی ہے، ٹھیک ہے، لی امام المسجدی، تو یہ لی فور امام، امام المسجد، تو لی امامی یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری، لی اور امام، اور پھر امام کیونکہ دیکھیں اعراب ہلکا ہے نا، لی تو حرف جر ہے اور کوئی ال تو لگا نہیں ہے یہاں پہ، تو شروع میں ال بھی نہیں ہے امام میں، اس کو میں یہاں پہ کر دوں، یہ ایسے ہے، ایسے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ لی کا زیر ہے اور یہاں جو حمزہ دکھ رہا ہے انہوں نے لی کا زیر یہاں پہ نہیں لگایا، تو لی امامی، یہ ہے لی پلس امامی، کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ لی یہ حالت جر میں ہے تو یہ مرکب جاری ہو گیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اعراب ہلکا ہے، شروع میں ال بھی نہیں ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ امام المسجدی، لی نہیں، لی امامی تو ہو گیا مرکب جاری، پھر لی کو آپ چھوڑیں اور صرف امامی کو لیں، تو امام المسجدی یہ ہو گیا مرکب جاری، تو یہاں پہ میں لکھ دوں، یہاں پہ یہ ہے اشاری، بس اتنا ہی لکھا میں نے، یہ دونوں ہیں مرکب اشاری، پھر یہ دونوں ہیں مرکب توصیفی، پھر یہ ہے مرکب جاری، اور پھر امام المسجدی
ये है मुरक्कब इजाफी। अब तर्जुमा देखिए कैसे करते हैं। वो बड़ा कमरा मस्जिद के इमाम के लिए है या मस्जिद के इमाम का है? दोनों तरह से आप कर सकती हैं। वो बड़ा कमरा मस्जिद के इमाम, क्योंकि मुरक्कब इजाफी में दोनों के बीच में का लगाती है ना, मस्जिद के इमाम का है या के लिए है, दोनों कर सकती हैं, क्योंकि ली का तर्जुमा लिए ही किया जाता है। तो दोनों तरह से कर सकती हैं कि मस्जिद के इमाम के लिए है, उर्दू में हम बोलते हैं मस्जिद के इमाम का है। दोनों सही है। आगे चले। अब मैं लेती हूं आप में से ही किसी को, जिन्होंने फिनाऊब कहा था वो आ जाएं। जी मैम। मैम जरा एक बार तो आप फिर इसका तर्जुमा कर दें, तिलकल हुजरा तिलकल कबीरा तो ये कीजिए। इमाम बादशाह। तिलकल हुजरती, वो तिलकल हुजरतु, सॉरी, तिलकल हुजरतुल कबीरतु, यहां तक का तर्जुमा हुआ वो बड़ा कमरा। ठीक है। ली इमामिल जी मस्जिदी, मस्जिद के इमाम का है या मस्जिद के इमाम के लिए है। वो जी बड़ा कमरा मस्जिद के इमाम के लिए है। ठीक है। जी आगे चलते हैं। मिफ्ताह, मिफ्ताह फताहा का मतलब होता है खोलना, मिफ्ताहु का मतलब होता है खोलने वाली चीज यानी की, चाबी की। मिफ्ताहुल हुजरति सगीरती इंदल मुअज्जिनी। अब ये देखिए, अगर यहाँ पे नहीं भी, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जेर लगा के ही पढ़ना, क्यों पढ़ा गया यहाँ पे जेर लगा के? अगर मान लीजिए मिस भी है तो हम आराम से पढ़ सकते हैं कि मिफ्ताहुल हुजरती। यहाँ पे तो ये जेर आई क्योंकि ये मुदाफ है, तो ये मुजाफ इलै इसको बनना पड़ेगा। मिफ्ताहू कहा ना हमने, न शुरू में अल है और न यहाँ तनवीन है, तो ये मुदाफ हो गया, चाबी मुजाफ बन गई यहाँ पे। इसके आगे जो इसम आएगा वो हालत जर में होना चाहिए, और यहाँ जेर हल्की सी लगी थी। तो मिफ्ताहुल हुजरती, तो कमरे की चाबी। ठीक है। अब उसके आगे सिफत भी आ रही है, बिल्कुल देखिए, अल हुजरती सगीरती, इसको अल हुजरती सगीरतु नहीं करेंगे। जैसे ही अगर हो गया अल हुजरती सगीरतु किसी ने पढ़ा, तो अब ये सिफत रह ही नहीं गई, वो कोई और चीज है। ये जो है किसी और चीज के, इसके बारे में हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए किसी जुमले में अल हुजरती है और उसके आगे अस सगीरतु है, इसका मतलब ये जो छोटी चीज है, ये छोटा एडजेक्टिव जो है, वो अब इसके लिए होगा ही नहीं। इस जुमले में किसी और चीज के लिए बताया जा रहा है कि वो छोटा है, जो कि पेश तनवीन के साथ, पेश के साथ होगी। रफा की हाल, अगर हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि अगर यहाँ पे असगीरतु होता, तो ये सिफत इसके लिए अब काम नहीं कर, बल्कि किसी ऐसे इस्म के लिए जाती उस जुमले के अंदर जो मौजूद होता, और वो रफा की हालत में होता, क्योंकि सिफत रफा की हालत में आ रही है। तो सिफत हमेशा मौसूफ को चारों लिहाज से फॉलो करेगी। जी मैम। चारों लिहाज मतलब एराब से भी, जिन्स से भी, अदद से भी, और वुसअत से भी। वुसअत का टॉपिक अभी हम अगले हफ्ते वहां कवर करेंगे। अभी बस आप ये समझ लें कि अगर शुरू में अल है तो इसके भी शुरू में अल, और अगर ये तनवीन है तो इसके भी आखिर में तनवीन रहेगी। तो मिफ्ताहुल हुजरती सगीरती, छोटे कमरे की चाबी। अब ये पूरा बन गया, मिफ्ताहुल हुजरती ये बन गया मुरक्कब इजाफी, और अल हुजरती सगीरती ये बन गया मुरक्कब तौसीफी। इंदल मुअज्जिनी, ये कौन सा मुरक्कब है ये बताएंगी? एक मिनट, नाइला। इंदल मुअज्जिनी ये कौन सा मुरक्कब है? उम्मे कुलसूम आप बताइए। जी मैम। इंदल मुअज्जिनी ये कौन सा मुरक्कब है? ये मैम मुरकबे इजाफी नहीं है। वेरी गुड, आप सवाल मत करिए, जवाब दें। इंदल मुअद्दिनी ये मुरक्कबे इजाफी जी है। इंदा मुरकबे इजाफी। मुजाफ है,
और अलमुअद्दिनी, ये देखें ये जेर यहाँ बता रही है जाती है। ये हालत जर में है, तो ये हो गया मुअज्जिन के पास जब है। जाहिर है छोटा कमरा मुअज्जिन का था, ऊपर आपने पढ़ देखा कि छोटा कमरा मुअज्जिन का था, तो छोटे कमरे की चाबी किसके पास है? इंदा का मतलब होता है पास। तो आप देखिए जी मुअज्जिन के पास, तर्जुमा में आपने के लगाया ना, मुरक्कब इजाफी का जो का जी लगता है, मुअज्जिन के जी पास है, इंदा का मतलब पास। तो एक बार फिर, मिफ्ताहुल हुजरती मुरक्कब इजाफी, अल हुजरती सगीरती मुरक्कब तौसीफी, इंदल मुअद्दिनी मुरक्कब इजाफी। ठीक है, जी। तर्जुमा एक बार फिर, छोटे कमरे की चाबी मुअज्जिन के पास है। ठीक है, व मिफ्ताहुल, व का मतलब हो गया और। अब देखिए व मैम मिफ्ताहुल, ये कबीरती बड़ा नहीं होता? कबीरती तो भी मैंने पढ़ा ही नहीं, ये सगीरती पढ़ा ना मैंने। मैम अल हुजरातिल कबीरती कहाँ पढ़ा इंदल आपने इमाम। गुजरती कबीरती? वो यहाँ? नेक्स्ट लाइन में है। अभी मैं यहाँ नहीं मैम पहुंची, अभी मैं यही पढ़ रही थी, ठीक है। अच्छा अच्छा। अभी मैं यहाँ नहीं पहुंची, अब पढ़ने जा रही हूँ। व मिफ्ताहुल हुजरतिल कबीरती इंदल इमामी। अब ये देखिए यहाँ पे इंदल इमामी, अल इमामी हो गया, ठीक है। देखते हैं फिर, व मिफ्ताहुल हुजरती। अब यहाँ व मिफ्ताहु हमने देखा, मिफ्ताहु एराब हल्का है, अल भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, एराब हल्का है। आगे एक इसम मिला जो कि हालत जर में है, तो ये बन गया हमारा मुरक्कब इजाफी। तो इसको करेंगे कमरे की चाबी। अच्छा, अब कमरे की भी सिफत आगे आ रही है, अल हुजरतिल कबीरती, तो मतलब ये बन गया हमारा मुरक्कबे तौसीफी। तर्जुमा होगा यहां से यहां तक, बड़े कमरे की चाबी। ठीक है, और बड़े कमरे की चाबी इंदल इमामी। इंदा, देखा हमने कि ये मुदाफ की कंडीशन पूरा कर रहा है, और अल इमामी ये हालत जर में है, तो ये हो गया इमाम के पास है, और बड़े कमरे की चाबी इमाम के पास है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? किसी को कोई सवाल? नो मैम। अब चलते हैं आगे, लिहुजरतिल, अब कमरे तक पहुंच गए, अब कमरे के आगे देखा जाए क्या हो रहा है। लिहुजरतिल इमामी बाबुन व नाफिदतुन। लिहुजरती, ये हो गया मुरक्कबे जारी। जैसे ही हमको एक किस्म दिखाई देगा हालत जर में, हम सोचेंगे कि ये क्यों हालत जर में आया, और उसके पीछे जाके देखेंगे क्या हरफे जर है, या ये कोई मुदाफ है वहां पे। हमको यहाँ पे हरफे जर ली मिल गया, और हम समझ गए कि ये मुरक्कबे जारी लिहुजरती, कमरे के लिए है ना, कमरे के लिए। लेकिन अभी बात आगे चल रही है, लिहुजरतिल इमामी। अब हमने न सिर्फ ये देखा कि हालत जर में है, बल्कि एक दूसरी बात पता चली कि ये हुजरती जब हमने पढ़ा कि इसका एराब हल्का भी है। ठीक है, हुजरती, न शुरू में अल है न आखिर में तनवीन है, तो इसका एराब हल्का। एराब हल्का हमको फौरन सिग्नल देता है कि ये मुदाफ हो सकता है। लेकिन मुजाफ के लिए क्या कंडीशन है? आगे हमको एक किस्म चाहिए जिसकी बस एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? कि वो हालत जर में हो, उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। वो एराब में, वो सॉरी, वो वसत में भी अलग हो सकता है, जिन्स में भी अलग हो सकता है, कुछ भी है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो हालत जर में होना चाहिए, बस। जैसे ही हालत जर में मिला, हम समझ गए कि ये हुजरतिल इमामी। अब ये हो गया इमाम का कमरा। ठीक है, इमाम का कमरा, और ये लिए है आगे, जिसको कि हम उर्दू में का भी कर देते हैं, इमाम के कमरे का कर देते हैं। इमाम के कमरे के लिए, अब देखिए क्या कमरे के लिए है? बाबुन। अब जैसे बाबुन आया तो हम समझ गए कि ये खबर नकीरा हमको मिल गई, कि अब ये जुमला कंप्लीट हो गया। हमने क्या कहा था कि जुमला इस्मिया की, ये जुमला इस्मिया एक जुमला है जो कंप्लीट है, इसीलिए उसको जुमला कह रहे हैं।
जो छोटे जो इनकम्प्लीट होते हैं ना उनको मुरक्कब कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जब ये दो से ज्यादा अल्फाज मिलके एक बात पूरी हो जाती है तब उसको कहते हैं जुमला। या अगर मुरक्कब के उसमें मुरक्कबे ताम, मुरक्कबे नाकिस, ये सारे अल्फाज इंशाअल्लाह ताला हम उस क्लास में बताएंगे। तो जैसे ही हमको खबर नकीरा मिल जाती है, यानी खबर तनवीन के साथ मिल जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि अब ये जुमला हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ जुमला कंप्लीट हो गया कि इमाम के कमरे का एक दरवाजा है, एक का भी तर्जुमा हमने किया यहाँ से, और जुमले के कंप्लीट होने का मफहूम भी लिया। तो इमाम के कमरे के लिए एक दरवाजा है। अब ऐसे तो नहीं बोलते हम ना कि उस उनके घर के लिए एक दरवाजा है, हम कहते हैं उनके घर का एक दरवाजा है ना। तो आप तर्जुमा उर्दू में बेशक कर लें, इमाम के कमरे का एक दरवाजा है, और नाफिजतुन, और एक खिड़की है। इमाम के कमरे में क्या है, एक कमरे का एक दरवाजा है और एक खिड़की भी है, नाफिजतुन। ठीक है। बाबुन मुजक्कर हुआ और नाफिजतुन मुअन्नस, क्योंकि अलामत हमको यहाँ पे गोलता की मिल गई। तो आगे चले देखें, इसी हिसाब से अब आगे की बातें होंगी। अगर बाप के बारे में बात होगी तो आप देखेंगे कि मुजक्कर आ रहा है, खबर मुजक्कर आ रही है। और खिड़की के बारे में बात हो रही है जो मुअन्नस है, तो उसकी खबर आप देखिए मुअन्नस आ रही है। बस इन्हीं सब चीजों की प्रैक्टिस आपको दी जा रही है। ठीक है, ये सारी जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, ये इन्हीं सब बातों की आपको प्रैक्टिस दी जा रही है कि कहाँ पे क्या चीज किस मुनासबत से आएगी, और क्या अलामत है कि आप समझ जाएं कि जुमला कंप्लीट हो गया, क्या अलामत है कि आप समझ जाएं कि ये मुरक्कब है, वो मुरक्कब है। तो ये मैम कैसे? ये मैम हुजरती और नाफिजतुन, ये तो मुअन्नस है, लेकिन ली इमामी बाबुन, ये क्या? अच्छा, दोनों ये बताएं मुरक्कब कि मुरक्कब। सवाल किसने पूछा, नाम बताएं पहले। मैं कुछ सो उम्मे कुलसुम, आपने इसके पूरे लेक्चर्स ले लिए और रिकॉर्डिंग सुन ली? अभी नहीं जी सुनी? मैम, बस दो रहते हैं मेरे। तो जब वो दो पूरे हो जाएंगे ना, इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। चलें, अब आपने अच्छा पूछा है तो मैं चलिए। बता दूं यहाँ पे क्या सवाल है, फिर से पूछे। ये आप इससे ये क्यों देख रही हैं, लिहुजरतिल, हमने बस वो फॉलो करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि मुरक्कबे इजाफी में ये हुजरत, ये जैसे लिहुजरतिल इमामी है ना, तो इमाम को जरूरी नहीं है कि ये मुअन्नस है तो इमाम को भी मुअन्नस होना है, नहीं। मुरक्कबे इजाफी की तो ये कंडीशन नहीं है। मुरक्कबे इजाफी का तो, और ना ही मुरक्कबे जारी की कोई ऐसी कंडीशन है। मुरक्कबे जारी में हरफ जर होना चाहिए और इसमें मजरूर होना चाहिए। जिन्स की और अदद की मैंने किसी चीज की कोई बात ही नहीं की यहाँ पे। जब तक कोई बात कही ना जाए, आप अपने जहन में सोच के कुछ एक्स्ट्रा नहीं कुछ सोचें। जब कोई चीज बताई जाए और वो मिस हो जाए तो जरूर परेशान हो, लेकिन कोई चीज बताई नहीं गई तो उसको सोचने की जरूरत भी नहीं है कि यहाँ पे ये क्यों। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये बाबुन मुजक्कर, ये ये मुअन्नस, तो ये मुजक्कर आप ऐसे सोच रही हैं ना। फिर ये नाफिजतुन, ये मुअन्नस। ये बात नहीं है कि किसी जुमले में अगर ये अगर हुजरा की बात हो रही है तो अब सारी चीज इसकी सिफत होगी। तो अगर हुजरा की सिफत होगी तब वो होगी मुअन्नस। ये तो खबर है ना। अब कमरा मुअन्नस है तो उस कमरे की चीजें तो मुजक्कर हो सकती है ना, खबर तो मुजक्कर हो सकती है। मैं समझ गई कि ये क्या सोच रही हैं, क्योंकि आगे मैंने कहा था कि जैसे मैंने कहा है कि अल बाबू मुकफलुन, तो यहाँ पे बाब ये है, तो इसकी खबर ये आ रही कि दरवाजा खुला हुआ है। तो ये जो खुला हुआ वर्ड आ रहा है, ये दरवाजे के लिए आ रहा है ना, कि दरवाजे दरवाजे के ऊपर एप्लीकेबल है। आप समझ रही हैं, आई आई अंडरस्टूड आप क्या। बहुत सही सवाल इन्होंने किया है, जो इनके जहन में सवाल आया है उम्मे कुलसूम के, ये बहुत सही आया है कि हुजरा जब फेमिनिन है तो इसकी खबर ये बाबुन क्यों मुजक्कर आ रही, इन्होंने ये कहा। बेशक बिल्कुल सही है कि हुजरा अगर मुजक्कर मुअन्नस है ना, तो उसका दरवाजा,
تو یہ تو ایک چیز ہے جو اس میں بتائی جا رہی، لیکن اگر حجرا کے ہی بارے میں یہ چیز ہوگی، بھائی حجرا میں ایک کمرہ ہے، ٹھیک ہے، سوری ایک دروازہ ہے، ایک کھڑکی ہے، اور دوسری چیز ایک پردہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب اس کمرے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں سے کچھ مذکر ہو سکتی ہے، کچھ مؤنث، لیکن اگر وہ چیز 100% اسی حجرا کے لیے، وہ خبر 100% اس پہ اپلیکیبل ہوتی، جیسے چھوٹا کمرہ، بڑا کمرہ، خوبصورت کمرہ، بدصورت کمرہ، گندا کمرہ، صاف کمرہ، اللہ اکبر، ابھی میں نے یہ جتنی باتیں کی ہیں یہ سب ڈائریکٹ اس کمرے پہ اپلیکیبل ہے نا کلثوم؟ سمجھ رہی جی ہیں آپ؟ میم، تو یہ جی جی ساری باتیں مؤنث میں ہوتی، کیونکہ یہ ساری، جیسے میں کہتی صاف کمرہ، تو یہ صاف بھی مؤنث ہوتا، گندا کمرہ تو یہ گندا لفظ بھی، کیونکہ یہ اسی کی صفت ہو رہی ہے، اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ کمرے کا ایک دروازہ ہے، ایک کھڑکی ہے، ایک پردہ ہے، ایک چوکیدار ہے نا؟ جی جی تو اب یہ تو مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتی ہیں، تو خبریں بھی دو تین خبریں ہیں کہ کچھ اس کے ایک دم ڈائریکٹ اس پہ اپلیکیبل ہے، ڈائریکٹ خبر ہوگی جیسا آگے آ رہی ہے، وہ تو بے شک جنس کے حساب سے فالو کرے گی، ٹھیک ہے، وہ عدد جی وہ فالو کرے گی، عدد کے حساب سے نہیں، لیکن جو آگے ابھی میں دکھاتی ہوں، لیکن خبریں بھی دو طرح کی ہیں، ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ، یہ خبر جو ہے انڈائریکٹ ہے، کمرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لحجرت الامامی، امام کے کمرے کا، اب ہم بتا رہے ہیں اس میں انفارمیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک دروازہ ہے، اور دروازہ ہمیشہ ہی مذکر آتا ہے تو وہ مذکر ہی رہے گا، ونافذتن، اور ایک کھڑکی ہے، اور نافذہ لفظ ہی یہ ہمیشہ، نافذہ یہ چاہے کسی آدمی کی کھڑکی ہو یا کسی عورت کی کھڑکی ہو، یہ تائے مربوطہ کے ساتھ ہی آئے گی، اب کلیئر ہو جی گیا؟ جی جی کسی آدمی کے کلیئر ہو کمرے کی کھڑکی ہو یا کسی عورت کے کمرے کی کھڑکی ہو، کھڑکی بیچاری مؤنث ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ جی میم، سمجھ آ گئی۔ لیکن سوال آپ کا اچھا تھا، مجھے جب سوال صحیح سمجھ میں آیا تو میں نے کہا انہوں نے صحیح سوچا کہ یہ حجرا جب فیمیل ہے تو یہ بابن میل کیوں آیا، یہ خبر جو ہے ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ سیکنڈری خبر کہہ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک اب یہاں دیکھیں ڈائریکٹ خبر آ رہی ہے، الباب مقفل، یہ بند کیا ہے، دروازہ لاکڈ ہے، تو یہ لاک کیا چیز ہے، دروازے کی ڈائریکٹ خبر آ رہی ہے نا، جی تو اب یہ فالو کرے گی اس کو جنس کے لحاظ سے، الباب مقفل، دا ڈور از لاکڈ، میں نے دا کا انگلش میں کیوں ترجمہ کیا، جس سے آپ کو ال ال کا بھی ترجمہ میں دے سکوں، اردو میں یہ جی ال جی کا ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، بس بولیں گے دروازہ لاکڈ ہے نا، تو دا ڈور جی از لاکڈ، دروازہ بند ہے، والنافذۃ مفتوحۃ، جی اور وہ یہاں پہ اب یہ دیکھیں سمجھ آ یہاں گئی۔ پہ یہ مؤنث ہے، تو اس کی خبر اور مؤنث آ رہی ہے کیونکہ کھڑکی ہی کھلی ہوئی ہے، یہ ڈائریکٹ کھڑکی کی ہی بات ہو رہی ہے، تو اس جی کی جی خبر اب مؤنث آئے گی، لیکن یہ سمجھ آ گئی، انڈائریکٹ وہ خبر تھی، انڈائریکٹ ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے تو الباب مقفل والنافذۃ مفتوحۃ، اور ایک بات سمجھے کہ ہمیشہ جیسے یہ چیزیں آتی ہیں نا تو بیک گراؤنڈ میں شیطان یہ چلاتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے، ہم آپ کو، میں کوئی ایسے لکھنے کو دوں گی نہیں، ہے نا، کوئی میں جی اردو سے آپ کو عربک میں ترجمہ کرنے کو دوں تب آپ پریشان ہو کہ میں کیا لگاؤں گی، مذکر لگاؤں مؤنث لگاؤں، آپ کو تو شروع سے آخر تک عربک سے ہی اردو ہم کر رہے ہیں نا، جی جی ہم کبھی بھی اردو سے عربک نہیں کریں گے ہم، کیونکہ قرآن تو لکھا ہوا ہے، وہ لکھنا تھوڑی ہے کسی کو، ہمیں لکھے ہوئے کو سمجھنا ہے، تو ہماری جو یہ قرآنک عربک گرامر چلتی ہے، اگر صرف میں پڑھاؤں عربک گرامر تو بالکل پھر تو میں اردو سے عربک، انگلش سے عربک یہ سب کراؤں گی، اگر میری کلاس کا یہ مقصد ہو کہ عربک سکھانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل ایم ہمارا کیا ہے کہ قرآن کا ہے، تو قرآن اور حدیث تو سبحان اللہ لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں تو ہم لکھنا تو دور، کوئی چینج بھی کرنے کی گنجائش کسی کو نہیں ہے، تو
लिखना तो हमें है ही नहीं, लिखी हुई चीज को समझना है। तो यहाँ पे जब भी आपको दिया जाएगा तो अरबिक से ही उर्दू करना होगा, ठीक है। तो वो तो आप समझ ठीक। जाएंगे कि खबर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आपको मैं तर्जुमा करने को नहीं दूंगी, ठीक है। तो जी आप मैम, ये परेशान ना हो। आपने बहुत अच्छा मुझे समझ आई कि डायरेक्ट जो है और इनडायरेक्ट, इन हाँ दोनों की समझ आ गई। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि देखें अब आदमी है, ऐसे समझें आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक आदमी है तो आदमी के पास रुमाल भी हो सकता है ना। रुमाल अरबिक जी में फेमिनिन। तो अब वो हम ये तो नहीं कर सकते कि अब हम ये कहें आदमी के पास रुमाल है, तो रुमाल हर हाल में फेमिनिन ही है। तो उसको तो हमें वैसे ही बताना पड़ेगा, वो चेंज नहीं कर सकते, मजबूरी है, ठीक है। ठीक। और ये जो है वो आदमी, ये तो एक दूसरी चीज है जिसका उस आदमी से पोजेशन का ताल्लुक है, लेकिन ये आदमी की सिफत तो नहीं है। रुमाल आदमी की जी जी समझ रहे हैं जी ना, समझ रही हूँ। जी वो उसकी मैम, बहुत अच्छी पोजेशन है, समझा। वो उसकी चीज है। इसी तरह ये दरवाजा और खिड़की उस कमरे की एक पोजीशन है, एक चीज है, उस कमरे की कोई सिफत नहीं है। तो मैंने बताया कि अगर ये सब सिफत होती, गंदा कमरा, साफ कमरा, कमरा साफ है, कमरा गंदा है, चले खबर लें, वो तो सिफत तो नहीं, खबर ही लेते हैं, कमरा गंदा है। अब जो है इस सिफत को फेमिनिन होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये डायरेक्ट कमरे की खबर दे रही है। बिल्कुल। समझ गई हैं आप सब लोग? जी जी। चल, गुड। तो दरवाजा लॉक्ड है और खिड़की खुली हुई है। द डोर इज लॉक्ड एंड द विंडो इज ओपन्ड। अलन नाफिजती सितारतुन जमीलतुन। अलन नाफिजती, अब अला क्या है, अभी जैसे ही हमें अलन नाफिजती, तो ये किसी इस्म के हालत जर में जाने को हमेशा हम सोचेंगे। जैसे ही हालत जर में दिखे तो सोचेंगे कि क्या वजह, उससे पहले कोई इस्म है या हर्फ है। यहाँ हमको हर्फ मिल गया अला। तो अला का मतलब होता है पर, अपॉन या ऑन, ठीक है। तो ये हो गया खिड़की पर, तो ये हो गया हमारा मुरक्कबे जारी। फिर अन्नाफिजती, न सिर्फ ये हालत जर में था, अन्नाफिजती, अब ये देखिए अल है और ये अल है, तो ये मुदाफ तो नहीं हो सकता। तो हमें ये हालत जर में है, बस ये बात, अलन नाफिजती खिड़की पर, और आगे खबर आ रही है। खिड़की पर क्या है, खबर आ रही है, सितारतुन जमीलतुन। अब ये दोनों मिलके क्या हो गए, मुरक्कबे तौसीफी, खूबसूरत पर्दा है ये इसकी, ठीक है। खिड़की पर एक खूबसूरत पर्दा है। सितारा कहते हैं पर्दे को, ये पहले कर चुके हैं आप। अलन नाफिजती खिड़की पर, सितारतुन जमीलतुन एक खूबसूरत पर्दा है। फिल मस्जिदी, मस्जिद, अब देखिए फिल मस्जिदी जेर, जब भी जेर आए आप अपने जहन पे जोर डालें और पीछे जाएं। जेर है, उसके पीछे देखिए क्या है, हमें हरफ जर मिल गया, और ये बस बन गया मुरक्कबे जारी। और तर्जुमा होगा मस्जिद में। साअतुन दक्काकतुन, अभी देखिए साअतुन घड़ी है, और ये दक्काकतुन वॉल क्लॉक है, ठीक है। मस्जिद में एक बड़ी वॉल क्लॉक लगी होती है ना, उसी को बता रहे हैं कि मस्जिद में एक वॉल क्लॉक है। मैं लिख दूं यहाँ पे? मैम, ये सातुन क्लॉक होगी और दक्का का वॉल। जी, मस्जिद में एक वॉल क्लॉक है। सात वैसे भी टाइम को कहते हैं ना, तो उसी से सातुन ये एक इसम है, तो कोई चीज का नाम है, तो ये हो गया क्लॉक। सातुन दक्काकतुन, मस्जिद में एक वॉल क्लॉक है। वह सज्जादतुन फाखिरतुन, सज्जादा कहते हैं कालीन को, कारपेट जो होता है। और फाखिरतुन शानदार, मैं थोड़ा सा लिख दे रही हूँ कि आपको फिर अगर अभी नहीं लिख पा रही हैं तो बाद में आप लिख सकें, और वीडियो को स्टॉप पॉज करें और लिख लें। तो अब देखिए सज्जादतुन फाखिरतुन, अब आपने देखा कि सज्जादतुन और फाखिरतुन हर लिहाज से सेम है ना। एराब देखें, पेश तनवीन यानी रफा रफा। फिर जिन्स देखें, ये फेमिनिन, दाए मरबूता ये भी फेमिनिन। फिर अदद देखें, सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर। और फिर ये भी तनवीन के साथ है और ये भी तनवीन के साथ है। तो बस ये डिसाइड हो गया कि ये मुरक्कबे तौसीफी। और तर्जुमा फिर एक बार पीछे से,
اور ایک شاندار قالین ہے. ہم نے ایک کا ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ہمیں یہاں سے واحد کا مطلب پتا چلا. اور ایک شاندار قالین ہے. میم ومصباح. یہ میم یہ ایک بات پوچھنی تھی، ساعتن کا مطلب اردو میں کیا ہوگا؟ آپ بال کلاک تو انگلش میں ہے نا، چلے تو ہاں، ویری گڈ یہ کوشچن. دیوار گھڑی ہے. دیوار گھڑی. ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا، ٹھیک. دیوار گھڑی ہے. مسجد میں ایک دیوار کی گھڑی ہے. یا دیوار گھڑی، میں کی اس لیے نہیں لگا رہی ہوں کہ پھر آپ کہیں گے تو مرکب اضافی ہے نہیں، ہے نا. جی تو جی، دیوار گھڑی بس لکھیں گی آپ. دیوار گھڑی. ہاں. آگے چلتے ہیں. وہ مصباحو. اب دیکھیں وہ اور مصباحو. اب یہ مصباحو آپ نے دیکھا اعراب ہلکا ہے، ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم نے دیکھا کہربا ان، تو ہمیں مل گیا یہاں پہ ایک اسم جو حالت جر میں ہے. تو یہ کیا بن گیا ہمارا مرکب؟ بولے بولیے اضافی. کون سا مرکب ہوا؟ اعراب ہلکا اور حالت جر میں ایک اسم. تو میم یہ مرکبے اضافی ہے نا؟ اضافی ہاں، ہے نا. مرکب اضافی. تو یہ بن گیا مرکب اضافی. اب دیکھیں مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اور کہربا آج آپ نے اسی لیسن میں شروع میں پڑھا بجلی کو کہتے ہیں. اب بجلی کا چراغ، بجلی کا چراغ کہتے ہیں آپ یا بلب کہتے ہیں؟ آج کل تو سب لوگ بلب کہتے ہیں نا، بجلی بلب. کا ایک جی بلب میں. ہے. جی میں. تو آپ پورا اگر انگلش میں کر رہی ہیں تو کہیں اینڈ الیکٹرک بلب، ایک الیکٹرک بلب ہے. اور اگر اس میں کر رہی ہیں آپ، اردو میں کر رہی ہیں، تو آپ لکھیں گے بجلی کا. اگر چراغ لکھنا چاہیں تو لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم لوگ آج کل بولتے ہیں اور ایک بجلی کا بلب ہے. یہ تنوین کی وجہ سے میں ایک کا مفہوم لا رہی ہوں کہ اور ایک بجلی کا بلب ہے. مصباح یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا تو مصباح لفظ وہاں بھی ہے. تو مصباح کہرباء، اور بجلی کا ایک بلب ہے. ومنبر ومنبرم جب وہ کر دیتے تو ومنبر متین. ٹھیک ہے. ممبر تو آپ جانتی کہ ممبر کو کہتے ہیں، اور متین ہے مضبوط. متین کہتے ہیں مضبوط کو. ومنبر متین، اور ایک مضبوط ممبر ہے. ممبر جس پہ کھڑے ہو کے امام وہ دیتے ہیں خطبہ. ومنبر متین، متین مضبوط، اور ایک مضبوط ممبر ہے. ابھی چونکہ دیکھا یہ مذکر ہے تو یہ مذکر، یہ تنوین کے ساتھ یہ تنوین، یہ واحد یہ واحد، تو بس سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دونوں مرکب توصیفی ہیں. ومروحۃ سقف. اب یہ دیکھیں کون سا مرکب ہو سکتا ہے بتائیں. یہ وہ تو ہو گیا. اور اب مروحۃ سقف کون سا ترجمہ ہوگا؟ ارے کون سا مرکب ہوگا؟ میم یہ بھی مرکب اضافی ہوگا. مرکب اضافی ہے. یہ مرکب اضافی ہے. مروحۃ یہ اعراب ہلکا ہے، ال بھی نہیں دکھ رہا ہے، تنوین بھی نہیں، اعراب ہلکا. اور آگے ہم کو ایک اسم مل گیا حالت جر میں، تو یہ ہو گیا مضاف الیہ، اور یہ ہو گیا مرکب اضافی. کریں گے ترجمہ پیچھے سے، لیکن میننگ تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا. تو چلے نوٹ کریں. مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو، اور سقفن کہتے ہیں چھت کو. تو اب اس کا ترجمہ چھت کا پنکھا ہوا، اور ایک چھت کا پنکھا ہے. انگلش میں کہیں گی اینڈ اے سیلنگ فین. انگلش میں چھت کے پنکھے کو سیلنگ فین کہتے ہیں نا، تو آپ سیلنگ فین بھی جی. کہہ سکتی ہیں. اور جب ترجمہ کریں گی تو آپ اردو میں تو کہیں گی اور ایک چھت کا پنکھا ہے. ہو گیا. جی. اب دیکھیں امام المسجدی، اب یہ امام نہیں کریں گی، امام المسجدی. ٹھیک ہے. امام مطلب ہوتا ہے سامنے. جی میں. یہ ایک لیسن میں کیا تھا ہم لوگوں نے. امام تو
इमाम तो आपको पता है, इसलिए हमजा की जबर जेर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमामल मस्जिदी, ये बताएंगी फजीलत की अमामल मस्जिदी कौन सा मुरक्कब है? फजीलत मैम ये मरकबे जारी, कौन सा मुरक्कब है? मैम मरकबे जारी। कब जारी नहीं। नहीं, मुरक्कब जारी इसलिए नहीं है कि अमाम हरफ जर नहीं है, ये इसम है। मैम ये मुरक्कब इजाफी। मरकबे, ये मरकबे जरफी नहीं है। जरफी तो कोई मुरक्कब नहीं है, मुरकबे मैम ये इजाफी है मरकबे मैम। मुरक्कब अजाफी। इजाफी है। ठीक है, इंदा मा खल्फा, एक लेसन किया था हम लोगों ने, इसमें इंदल, इंदा, अमाम, खल्फ, ये सारी चीजें आई थी, ये सारे इस्म आए थे, तो जी। उसके आगे मजरूर इस्म आया था, और ये दोनों मिलके बनाते हैं मुरक्कब इजाफी। अमामल मस्जिदी, और तर्जुमा काकी के लगाते हैं। अगर ये मुरक्कब जारी होता फाइल तो काकी के ना लगता। मस्जिद के सामने, मस्जिद का सामने तो नहीं बोलते ना, मस्जिद को भी थोड़ा इज्जत से बोलते हैं, तो मस्जिद के सामने। हदीकतुन, एक बाग है, मस्जिद के सामने एक बाग है। ठीक है। लहा बुस्तानी युन नशीतुन, उसका, लहा उसके लिए, ये एक्चुअली क्या था, ली और हा। ली का मतलब होता है फॉर या लिए, ये हर्फ हो गया, और ये हा जमीर है, हर की जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये भी मजरूर जमीर है, क्योंकि ली हरफ जर है, तो इसके आगे जो जमीर आएगी वो मजरूर होगी ना। तो ये हा मजरूर हालत में है, और इसकी रफा की जमीर होती है हिया, ये है रफा की हालत में। और जब इसी की जर की हालत में जमीर, जब यही हिया जर की हालत में गया, तो ये बन गया हा। तो लहा, अब ये हा क्यों आया? क्योंकि हदीका के लिए आ रहा है ना, मस्जिद के सामने एक बाग है, अब उसका एक माली है, बाग का माली। तो ये बाग देखे, ये क्या है, फेमिनिन है, तो इसीलिए बाग के लिए जमीर इस्तेमाल हुई हर वाली, यानी हा। हिया की मजरूर जमीर इस्तेमाल हुई, मजरूर क्यों? क्योंकि ली आगे है। अब आप कह रही हैं ली तो नहीं है, यहाँ पे ला है। जी हाँ, उसी ली को अरब अरब अहले अरब ने ला में वो बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि लिहा मैम बोलना मुश्किल था, लहा बोलना मैम ये आसान है। जी बोले। मैम ये नसब और जर दोनों की जमीर होती है, हाँ। नहीं, अभी मैं इस बात को डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। ठीक। अभी मैं सिर्फ मजरूर, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि रफा की हालत में हिया था, और जर की हालत में यही जमीर हा बन जाती है। ठीक है, जब ये बात ठीक है। आगे आएगी तब, अभी कोई भी ऐसी बात यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हम, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो ये ली है, ली है जो कि जबान पर आसान होने के लिए ला में बदल गई जाहिरी तौर पर। अंदर अगर हम इसको ब्रेक अपार्ट करें, अगर लहा को हम कहें कि अलग अलग लिखिए, तो अब कोई अगर ला और हा लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखना होगा? लिहा। लिहा। इसको हमें लिखना होगा ली और हा, है तो लहा, लेकिन जब हम कहें इसको अलग अलग लिखिए, तो आपको लिखना होगा ली और हा, क्योंकि लाम जबर ला दूसरी मीनिंग देता है। ठीक है, अगर कोई कह देगा ला हा, तो ये गलत हो जाएगा, मीनिंग भी गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग दूसरा होता है, ताकीद के लिए वो आता है। ठीक है, ला, तो ये ला नहीं है बल्कि ली है। लहा बुस्तानी युन, उसका एक, अब देखिए माली हम पहले नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें इसकी सिफत को पहले बोलना होगा ना। बुस्तानी युन और नशीतुन, तो उसका, बुस्तानी युन कहते हैं माली को, माली, और नशीतुन एक्टिव या चाक को चौबंद। दूस तो
اس کا ایک चाको चौबंद माली है। ठीक है, बाघ को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है उसने। तो क्या कह रहे हैं, बाघ के बारे में बात हो रही है कि उसके लिए या उसका एक चाको चौबंद माली है। ठीक है, ये हो गया। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, काफी लंबी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखें इसकी एक्सरसाइज भी रहती है, तो इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज, अगर अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे और क्या नाम है, इंटरनेट भी सही रहे इंशाल्लाह, तो एक्सरसाइज कल कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। हम किस टाइम मैं करेंगे? मैम इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी? अभी भेज देती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। जी अभी जी मैं मैं भेज भेज देती हूँ। और इसको जो है आप क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग तो अल्लाहु अकबर, क्या लिखा है मैंने इतना। तो इस लेसन को आप कई बार पढ़िएगा। हादा मस्जिदुन बाबुहु कबीरुन फिनाउहु वासिउन सक़्फ़ुहु मुर्तफ़िउन मिज़नतुहु आलियतुन कुब्बतुहु जमीलतुन फिल मस्जिदी हौदुन फिल हौदी समकुन लौनुहु अहमरु व अस्फरु व अज़रकु। ठीक है, तो इस इतनी बार पढ़े कि जल्दी जल्दी हम पढ़ सके और पढ़ने में मतलब आसान लगने लगे। ये सारी दिमाग के बैकग्राउंड में जो एक नॉइज आती है कि मुश्किल मुश्किल, वो हट जाए और लगने लगे कि सब कुछ बहुत आसान है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस लेसन को पढ़ते हुए आपको हर वक्त ये गौर करना है कि अगर किसी लफ्ज पर, किसी इस्म पर अगर हमें जेर नजर आ रही है, तो उसकी वजह क्या है, वो कौन सा मुरक्कब बन रहा है, मुरक्कबे जारी बन रहा है या मुरक्कबे इजाफी बन रहा है। क्योंकि बस ये दो जी ही वजह हो सकती हैं। और फिर आपको जो जी सारी बातें बताई गई कि सिफत जो है मौसूफ को फॉलो करती है, सिफत को पहले बोलते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल ऐसी हो जानी चाहिए जैसे बहुत आसान। तो इस लेसन को बहुत बार पढ़ेंगी। जब ये लेसन आपको बहुत आता तो है, आपको आप कंफर्टेबल हो जाए, आपको बहुत आसान लगने लगे, बिल्कुल अपना अपना सा लगने लगे, बोलने में भी सुनने में भी, और बस हम बोलते जाएं फिल फिनाई शजरतु वर्दिन, और आप समझ जाएं कि सहन में एक गुलाब का दरख्त है, हम बोलते जाएं और तर्जुमा आपके जहन में चलता जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप जो नए अल्फाज हैं उनको आप, उनकी वोकेबलरी, अपनी वोकैब जो नोटबुक है उसमें आप जरूर लिख लें। और उसको फिना उन करके लिखेंगी। ठीक है, हमेशा आप तनवीन के साथ लिखेंगी जो लफ्ज है, और हालत रफा में लिखेंगी। यहाँ पे जर में तो उसकी वजह होती है, किसी वजह से चला गया। अब जैसे अगर आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक, तो आप लिखेंगी कहरबा उन, और आगे लिख लीजिए बिजली या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कहरबाउन बिजली या इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह अगर आप लिख रही हैं दूसरा अमूदुन, तो इसको अमूदू नहीं लिखेंगी आप क्या लिखिए, क्योंकि अमूदू तो किसी वजह से हो गया, तनवीन के साथ था ये लफ्ज। हकीकतन अगर अकेले होता, तो जब आप अपनी वोकैब बुक में लिखेंगी तो लिखेंगी अमूदुन। ठीक है, और फिर लिखेंगी खंबा, पोल, जो भी लिखना चाहें, सुतून, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकती हैं, लेकिन तनवीन के साथ ये सारे। इसके अलावा इन अल्फाज को तनवीन के साथ मत लिखिएगा। अहमरू सुर्ख, असफरू पीला, अजरकू नीला, तो इसको तनवीन के साथ आप नहीं लिखेंगी। बाकी जो भी लफ्ज है, जैसे फिना उन लिखेंगी, फिना उन, ये हु नहीं लिखेंगे, ये हु दूसरा लफ्ज है। तो फिना उन सहन, सक़्फ़ुहु, तो इसमें सक़्फ़ुन लिखेंगी आप, जो वोकैब बनाएंगी लिखेंगी सक़्फ़ुन, और फिर लिखेंगी छत। और हाँ, अगर आपके लिए हु भी नया है तो आप लिखेंगी हु, और उसके भी लिख देंगी उसका, या इंग्लिश में हिज। हाँ लिखेंगी और लिखेंगी उसकी, और लिखेंगी उसके आगे हर, जैसे हाँ मैंने लिखा है हर। ठीक है, उसकी या हर। तो इंशाल्लाह ताला कल इसी वक्त या इससे थोड़ा पहले करेंगे क्लास इंशाल्लाह ताला, जिसमें हम लोग तमरीन यानी इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। और अगर टाइम मिलेगा, मैं अभी रिकॉर्डिंग 15 मिनट में ही अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, और लिंक भेज देती हूँ। तो आप लोग अगर कल की क्लास से पहले अगर इस लेसन को एक बार कर लेंगी
तो इंशाअल्लाह ताला एक्सरसाइज फिर आप लोग खुद ही करेंगी। और किसी का कोई सवाल कुछ पूछना है तो पूछे, वरना क्लास में खत्म करती हूँ। अच्छा ये देखिए ये गिल्ले जी हैं क्यों? हमसे कोई कुछ कह रहा है या आपस शाम में को बात तो कर नौ रहे हैं? टाइम पर लाया तो 7 सीटे बजे होंगे। 7:30। किसी कोई हमसे कुछ हाँ पूछ सारा रहा है? गिलो है। माइक अनम्यूट कर लें मैम एक जो बार सुबह प्लीज। मंडे ट्यूसडे क्लास है वो होगी 9 बजे वाली? जी हाँ, सुबह 9 बजे वाली फजीरत होगी। बोल रहे हैं। कल सुबह 9 बजे वाली तो होगी। ये तो एक्स्ट्रा क्लास है जो कि पिछली रिकॉर्डिंग हमारी मिस हो गई, तो इस वजह से दोबारा कर रहे हैं। और ये क्लास भी और थोड़ी जी मैम मैम। इसका टाइम भी बता दें प्लीज। किस चीज का टाइम? इस क्लास का? जी मैम, अब इस सुबह क्लास के का टाइम हो तो ज्यादा अच्छी है, जो पाकिस्तानी 2:30 बजे है। पाकिस्तानी 2:30 बजे कर लूं? हाँ मैम कर ले, वो आसानी है। इस टाइम भी कर ले, कोई बात नहीं, पर बता दे ताकि हम उस तरफ से अपनी प्लानिंग कर लेना। जी हाँ बिल्कुल, तो आप पाकिस्तान के टाइम से 3 बजे 2:30 बजे इसी हिसाब से कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, जी वो वक्त मेरे लिए भी सही है क्योंकि मेरे वहाँ बहुत लेट हो गया इस वक्त। लेकिन मुझे बस ये था कि मैं इस क्लास का थोड़ा सा कुछ कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह देख के बहुत खुशी हुई कि काफी लोग आ गए क्लास में, सुभान अल्लाह। तो हम रहते ऐसे मुल्क में हैं कि मेरा टाइम ही मैच नहीं करता। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी, अरबिक पढ़ाना होगा तो बहरहाल देखते हैं कि कैसे होता है। तो कल 3 बजे इंशाल्लाह ताला, या 2:30 बजे जैसे कि ये कह रही है, पाकिस्तान के हिसाब से 2:30 बजे और इंडिया के हिसाब से 3 बजे मिलते हैं, जिसमें करेंगे ये क्लास। और सुबह की वो क्लास तो आपकी होगी ही, जो उसकी क्लास है ग्रामर की, सुबह 9 बजे पाकिस्तान के टाइम से, और आई थिंक इंडिया के टाइम से 9:30। और कोई सवाल? तो आज का लेसन का नाम तो मस्जिद के बजाय मुरक्कबात होता तो भी अच्छा था, है ना? जी मैम। मुरक्कबात का ऐसा सिलसिला कि चेन्स ऑफ होना चाहिए, चेन ऑफ मुरक्कब। तो मैं इसमें मैं इतने ज्यादा मरकब है कि बस एक दफा तो सर घूम जाता है। बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन मैम मजा भी बहुत आता है। बिल्कुल, और उर्दू में भी तो हम देखिए, अब जो इस वक्त बात कर रहे हैं तो मुरक्कब ही उसमें बोल रहे हैं, है ना? जी इसका उसकी ये सब करते ही रहते हैं, बस ये चीजें थोड़ी जी नहीं है। तो वो कैब अगर आपकी याद कर लेंगी ना तो इंशाअल्लाह ताला चीजें थोड़ी आसान लगेंगी। चले, जी मिलते हैं कल सुबह 9 बजे अपनी ग्रामर की क्लास में, और दोपहर में मिलेंगे अपनी इस क्लास की एक्सरसाइज के लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम वालेकुम रिकॉर्डिंग सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हाँ, रिकॉर्डिंग भेजती हूँ।